Today's topic is a rank of a matrix. Now, before studying about what is rank of a matrix, the rank of a matrix has many applications. For example, if we know that what is rank of a matrix means the particular matrix has this much rank. So, if we know the rank of a matrix, we can tell whether the system of linear equations has solution or no solution. And if it has solution, then how many solutions are there? And one more application, that is, we can tell through rank that whether the given set of vectors means n-dimensional vector. We may have 3-dimensional vectors, 2-dimensional vectors, 10-dimensional vectors. So if we have one set of n-dimensional vectors, then we can tell that whether these vectors are linearly independent or dependent. So it has very many applications. So if you know that how to find out a rank of a matrix, then through this rank term, we can tell whether the corresponding linear system has solution or not, how many solutions are there, the set of vectors, n-dimensional vector, they are linearly independent vectors or dependent vectors. So, and more examples are also there, means more applications are also there. So the two application means out of these means two application we will study in this syllabus, means using the rank of a matrix to find out the solution of a linear system, and to find out whether the given set of vectors are linearly independent or dependent. So before the application part, we must study what is rank of a matrix. So here we have the definition of rank of a matrix. And what is the definition? The rank of a matrix A, like I told you that every matrix is denoted by the capital alphabets, capital A, capital B, capital C. So suppose we have one matrix capital A, then the rank of that matrix is denoted by either R of A, means we write whenever we means this thing is written R of A, that means rank of A, or row, this symbol is row of A, that is also for rank of A. So there are two notations to denote the rank of a matrix A. So A is given matrix, then row of A or R of A is, we say this as rank of matrix A. And what is this? The rank of a matrix is the order of largest non-zero minor of matrix A. So means for that matrix A, we have lot of minors of different orders. Means order 3 के भी minors exist करेंगे, order 4 के भी करेंगे, order 2 के भी करेंगे. So we have to find out the largest order such that that minor value is non-zero. So we have to search the order of largest non-zero minor of that matrix, and this order is called rank of that matrix. Or in simple way, we can say a number r, small r, is said to be the rank of a m cross n matrix. Means matrix may be square matrix or non-square matrix. So the matrix is of order m by n, then a number r is said to be rank of that matrix A if following two conditions are सेटिस्फाइड. अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी किसी भी नंबर r के लिए फॉर अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, so we say that this r is rank of that matrix. अब वो कंडीशंस क्या हैं जो दो सेटिस्फाई होना चाहिए? फर्स्ट कंडीशन इज देयर एग्जिस्ट, the symbol is there exist, the symbol is there exist, there exists at least one minor of order r which is non-zero. मीन्स दो कंडीशंस में से पहली कंडीशन क्या है कि उस मैट्रिक्स के लिए there exists at least one minor मीन्स ऑफ ऑर्डर आर. सो उस मैट्रिक्स के लिए
ऑर्डर आर का कम से कम एक माइनर ऐसा होना चाहिए विच इज नॉन जीरो, जिसकी वैल्यू क्या हो, नॉन जीरो हो, पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, ऑल माइनर्स ऑफ ऑर्डर हायर देन आर इफ एग्जिस्ट दे ऑल आर जीरो। मीन्स पहले तो दो कंडीशन क्या होगी, अगर हम आर को बोल रहे हैं कि आर इज द रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स, पहली कंडीशन ये है कि उस मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर आर का एक कम से कम एक माइनर ऐसा होना चाहिए जिसकी वैल्यू नॉन जीरो है, प्लस उस मैट्रिक्स में अगर आर ऑर्डर से आगे के ऑर्डर मींस हायर देन दिस ऑर्डर मींस आर प्लस वन, आर प्लस टू, आर प्लस थ्री, अगर इस ऑर्डर के उसके आर ऑर्डर के आगे के माइनर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो सारे के सारे की क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए उनकी वैल्यू। सो देयर आर टू कंडीशंस। फर्स्ट, अगर आप बोल रहे हो वन नंबर आर इज कॉल्ड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, देन उसके लिए एक ऑर्डर आर का माइनर होना चाहिए, एक चाहिए हमें केवल, there exists at least one minor which is non-zero, और इस ऑर्डर आर के आगे के मींस हायर देन दिस, इससे ज्यादा ऑर्डर के जितने भी माइनर्स हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। देन वी से दैट आर इज द रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, I assume that you know the definition of minor. What is minor? क्योंकि ये सारी definition जो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स किस पर डिपेंडेंट है, माइनर पर। तो आपको माइनर पता होना चाहिए व्हाट इज माइनर। अभी हम माइनर की बात कर रहे हैं। सो आई रिवाइज दैट टर्म फॉर यू, माइनर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के माइनर्स क्या होते हैं। सो लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n। तो हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर m by n है, एंड सो मीन्स इट मे बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स और नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब नंबर ऑफ रोज, नंबर एंड कॉलम्स वो दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। सो हम जनरलाइज ले रहे हैं m by n ऑर्डर, m n के इक्वल भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। सो लेट A be a matrix of order m by n, then the determinant corresponding to any r cross r submatrix of A is called minor of order R। क्या करना है आपको, व्हाट इज द डेफिनेशन, अगर कोई A मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m by n है, देन द डिटर्मिनेंट करस्पॉन्डिंग टू एनी r क्रॉस r, उस मैट्रिक्स r क्रॉस r सब मैट्रिक्स ऑफ A, उस मैट्रिक्स में से अगर हम कोई भी r बाय r की सब मैट्रिक्स निकाल लेंगे। सब मैट्रिक्स निकालने का मतलब क्या है कि वो किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स है, उसका कोई भी हम सब मैट्रिक्स मतलब उसमें से कुछ एलिमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं सच दैट वो स्क्वायर होना चाहिए। क्योंकि r बाय r की हम बात करें, उसकी सब मैट्रिक्स, ये एक टोटल, सपोज ये हमारी क्या है, एक टोटल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 3/3। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, एक सब मैट्रिक्स 3/3 की भी हो सकती है, जो इटसेल्फ सारे एलिमेंट अगर हम ले लें तो वो 3/3 की मैट्रिक्स हो जाएगा। फिर 2/2 के कई सारे हो सकते हैं, 1 2 4 5, ये हो जाएगा 2/2 का सब मैट्रिक्स। ऐसे ही फिर ऐसे 5 6 8 9, ये भी एक 2/2 का सब मैट्रिक्स है। ऐसे ही 4 5 7 8, ये भी 2/2 का सब मैट्रिक्स है। और ऐसे ही 1 2 7 8, अगर ये चार एलिमेंट लेंगे तो भी एक 2/2 का सब मैट्रिक्स है। ऐसे कई सारे इसमें एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर, ऐसा नहीं कि हमें साथ वाली कंसेक्यूटिव ही लेने हैं, आप 1 2 7 8 ये ले सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड रो को ले सकते हैं। क्लियर, आप 1 आप 1 3 7 8 को 7 9 को भी ले सकते हैं, ये भी एक 2/2 का सब मैट्रिक्स है। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि माइनर्स क्या है, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो m by n, हम क्या कर रहे हैं, एक डिटरमिनेंट की वैल्यू चेक कर रहे हैं, डिटरमिनेंट करस्पॉन्डिंग टू एनी r क्रॉस r सब मैट्रिक्स ऑफ A। तो इस मैट्रिक्स में से जितने भी स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनेंगी, इस मैट्रिक्स की जितनी भी स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनेंगी, उनके जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो सारे क्या है, माइनर्स। तो उस सब मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो ही उस माइनर का ऑर्डर है। जैसे अगर मैं इस मैट्रिक्स में 3/3 ऑर्डर की माइनर की बात करता हूँ, तो 3/3 का इसका सब मैट्रिक्स कौन सा होगा, यही होगा, क्योंकि 3/3 का ये पूरा ही मैट्रिक्स है। तो इसका एक सब मैट्रिक्स तो इटसेल्फ ये खुद ही होगा, तो उसका ऑर्डर क्या होगा 3/3। तो इसका डिटरमिनेंट अगर हम ले लेंगे, मींस इस 3/3 मैट्रिक्स की अगर हम डिटरमिनेंट लेंगे, वो क्या होगा, माइनर ऑफ ऑर्डर 3। सिमिलरली अगर हम 2/2 माइनर की बात करें, 2/2 ऑर्डर,
सो वो क्या होंगे, एक 1 2 4 5 हो सकता है, इसका डिटरमिनेंट ले लें 1 2 4 5, इसका डिटरमिनेंट ये वाला। ऐसे ही 1 2 7 8 ले लें, वो भी एक 2/2 का माइनर है। इन सबकी डिटरमिनेंट वैल्यू जो है उनको बोलते हैं माइनर, और ऑर्डर क्या होगा, जो सब मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2 2/2 2/2 2/2, 3/3 का एक ही एग्जिस्ट करेगा इटसेल्फ। डिटरमिनेंट ए जो होगा वो क्या होगा, माइनर ऑफ ऑर्डर 3। 2/2 के कई सारे एग्जिस्ट करेंगे, तो ये सारे 2/2 के आप कई सारे बता सकते हो। ऐसे ही 1/1, क्योंकि आप स्क्वायर सब मैट्रिक्स की बात कर रहे हो, मतलब सब मैट्रिक्स तो होनी चाहिए प्लस स्क्वायर पार्ट होना चाहिए। मतलब ऐसा आप 2/3 सेलेक्ट नहीं कर सकते कि आपने ये दो रो ले ली, तीनों कॉलम ले लिए, तो वो क्या होगी, नॉन स्क्वायर होगी। आपको सब जो सब मैट्रिक्स लोगे वो स्क्वायर होनी चाहिए। तो स्क्वायर का मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स आपको सेम रखने हैं। तो 3/3 हो सकता है मैक्सिमम, फिर 2/2 के कई सारे हो सकते हैं, फिर 1/1 के। तो 1/1 के तो सारे एलिमेंट है, 1/1 1/1 1/1, ये सारे के सारे क्या है, इनकी डिटरमिनेंट वैल्यू वो सारे क्या है, माइनस ऑफ ऑर्डर 1। ऐसे ही ऑर्डर 2 के माइनस क्या है, जो भी आप 2/2 का सब मैट्रिक्स लेंगे उनकी डिटरमिनेंट वैल्यू वो सारे क्या है, माइनस ऑफ ऑर्डर 2। और ऑर्डर 3 की अगर बात करेंगे तो डिटरमिनेंट ए, क्योंकि ये 3/3 का मैट्रिक्स है तो इसका एक ही माइनर बनेगा जिसका ऑर्डर 3 होगा इटसेल्फ। सो डिटरमिनेंट ए क्या है, ओनली माइनर ऑफ ऑर्डर 3। अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करते हैं, मैट्रिक्स से, तो ये इसका ऑर्डर क्या है, 2/3। अब इसका हम मैक्सिमम माइनर अगर देखें तो मैक्सिमम मतलब माइनर ऑफ मैक्सिमम ऑर्डर वो क्या होगा, 2/2, क्योंकि 3/3 का तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 3 कॉलम तो हैं बट 3 रो नहीं है, थर्ड रो नहीं है, तो इसका 3/3 ऑर्डर का कोई भी माइनर नहीं बनेगा। इसका मैक्सिमम ऑर्डर 3/3 नहीं बन रहा है, तो उसका नेक्स्ट ऑर्डर क्या होगा, 2/2। अब 2/2 के माइनर बन रहे हैं, एक तो 2 3 1 2 इसका डिटरमिनेंट। ऐसे ही एक 3 5 2 3 इसका ये भी एक डिटरमिनेंट है 2/2 का। इसके अलावा 2 1 5 3 ये भी 2/2 का एक माइनर है। तो ये सारे क्या है, 3 माइनर्स हैं जो ऑर्डर 2 के हैं। 1/1 के तो सारे ही हैं, जिससे 6 एलिमेंट है तो 6 माइनर्स हैं ऑफ ऑर्डर 1। केवल 2 3 डिटरमिनेंट 5 डिटरमिनेंट 1 डिटरमिनेंट 2 डिटरमिनेंट 3 ये सारे के 6 के 6 के हैं माइनस ऑफ ऑर्डर 1। so now I hope that you know what is minor of a matrix। so कि उस मैट्रिक्स का कोई भी स्क्वायर सब मैट्रिक्स जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जो होगी वो उसका माइनर होगा। मतलब उस मैट्रिक्स का पहले तो स्क्वायर सब मैट्रिक्स आप कैलकुलेट करिए कितने बन रहे हैं, और उन सबकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू होगी वो सारे क्या होंगे, माइनस होंगे। ऑर्डर क्या होगा, जो भी सब मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। तो मैंने आपको एग्जांपल बताया, इस ए में 3/3 का एक ही माइनर एग्जिस्ट कर रहा है, 2/2 के कई सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, और 1/1 के सारे एलिमेंट्स हैं। सेम इस मैट्रिक्स ए के लिए मैक्सिमम ऑर्डर 2/2 है, क्योंकि सब स्क्वायर सब मैट्रिक्स का केवल कब मिलेगा, जब 2/2 का होगा। 3/3 का पॉसिबल नहीं है, तो 3/3 का कोई माइनर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। 2/2 के कई कर रहे हैं, और 1/n के सारे एलिमेंट हैं। क्लियर? So these are minus of matrix। now अब हम फिर से डेफिनेशन देखते हैं, what is rank of a matrix। the rank of a matrix denoted by RA or row A is the order of largest non-zero minor of matrix A। और एक दूसरी डेफिनेशन, in other words a number R is said to be the rank of a M cross N matrix A if following two condition are satisfied। दो कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है। अगर हम R बोल रहे हैं कि R is the rank of matrix, तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। पहले तो ऑर्डर R का कम से कम एक माइनर होना चाहिए जिसकी वैल्यू नॉन जीरो हो। अगर आप बोल रहे हो दिस मैट्रिक्स इज ऑफ रैंक सपोज 3, सो ऑर्डर 3 का एक माइनर ऐसा होना चाहिए जिसकी वैल्यू नॉन जीरो हो। केवल हमें एक चाहिए जिसकी वैल्यू नॉन जीरो है, और ऑर्डर 3 से ज्यादा ऑर्डर के जितने भी माइनर्स हैं वो सारे के सारे जीरो होने चाहिए। मतलब ऑर्डर 4 के अगर उसमें पॉसिबल है माइनर्स, तो ऑर्डर 4 के जितने माइनर्स बनेंगे वो सारे के सारे जीरो होने चाहिए। ऑर्डर 5 के जितने माइनर्स बनेंगे वो सारे जीरो होने चाहिए। ऑर्डर 6 के जितने माइनर्स बनेंगे वो सारे जीरो होने चाहिए। क्लियर? सो दो कंडीशन है। एक तो अगर आप किसी भी नंबर को बोल रहे हैं कि दैट इज रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तो उस नंबर का कम से कम एक माइनर नॉन जीरो होना चाहिए, और उस ऑर्डर से ज्यादा ऑर्डर के जितने भी माइनर्स हैं वो सारे के सारे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्लियर? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। सो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। उसके थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा कि रैंक क्या है।
फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स दिस। सो मैंने आपको बोला था कि पहले किसी भी मैट्रिक्स की रैंक निकालने के लिए थ्रू माइनस हमें क्या करना चाहिए कि रैंक इज द ऑर्डर ऑफ लार्जेस्ट, द डेफिनेशन इज द लार्ज ऑर्डर ऑफ लार्जेस्ट नॉन जीरो माइनर ऑफ मैट्रिक्स ए। मतलब आप क्या करोगे, आपको सारे हमें क्या करना है, हम वन बाय वन से स्टार्ट कर सकते हैं कि वन बाय वन का कोई नॉन जीरो है क्योंकि वन बाय वन के तो सारे एलिमेंट हैं, तो ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, तो इसकी रैंक वन तो होगी। लेकिन रैंक वन कब होगी, जब ऑर्डर वन के हमें एक माइनर नॉन जीरो मिल गया है, कई सारे हैं, लेकिन ऑर्डर वन के आगे के, ऑर्डर वन से ज्यादा वाले जितने भी माइनर्स है वो सारे जीरो होने चाहिए। यानी अगर आप इसकी रैंक वन बोल रहे हो तो पहले तो वन ऑर्डर का एक माइनर मिलना चाहिए जिसकी वैल्यू नॉन जीरो है, तो वो है, सपोज ये वाला ले लीजिए। अब ऑर्डर वन से ज्यादा वाले जितने भी माइनर्स हैं वो सारे के सारे जीरो होने चाहिए। तो पहले तो ऑर्डर टू के हम चेक कर लेते हैं कि ऑर्डर टू के सारे जीरो होने चाहिए, ऑर्डर थ्री के सारे जीरो होने चाहिए, क्योंकि इसमें ऑर्डर थ्री का भी मिलेगा क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3/3। तो इसका मैक्सिमम माइनर जो बनेगा वो 3/3 ऑर्डर का बनेगा और 2/2 के कई सारे बनेंगे। ठीक है, तो आप, अब आप सपोज आपने लीस्ट नंबर से स्टार्ट किया कि वन बाय वन ऑर्डर के माइनर देख लेते हैं, तो आपने पहला देख लिया, हाँ ये जीरो नॉन जीरो मिल रहा है। यानी अब हम क्या कर लें, आप ये चेक कर लें कि अगर ऑर्डर टू और ऑर्डर थ्री के सारे माइनस जीरो होंगे तब हम बोलेंगे कि इसकी रैंक वन होगी। तो ऑर्डर टू के अगर हम माइनस देखें तो हम सपोज ये ले लेते हैं 3 6 -5 1, तो इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो डिटरमिनेंट क्या होगा, 3 इंटू वन 3 -6 इंटू -5, सो +30, सो 3 + 30 33, सो 33 क्या है, नॉन जीरो। इसलिए रैंक जो होगी आप टू पर शिफ्ट कर जाएगी, क्योंकि अब क्या हो गया, इसका ऑर्डर टू का एक माइनर हमें मिल गया जिसकी वैल्यू नॉन जीरो है, तो इसकी रैंक एटलीस्ट टू तो होगी क्योंकि लार्जेस्ट ऑर्डर आपको सिलेक्ट करना है। अब रैंक टू कब होगी, तो हमें ऑर्डर टू का तो एक माइनर मिल गया नॉन जीरो, लेकिन ऑर्डर थ्री के जितने भी माइनर्स होंगे वो सारे क्या होना चाहिए, जीरो होने चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि इसकी रैंक टू होगी। अब प्रॉब्लम क्या होगी इस प्रोसेस में, अगर आपने मिनिमम ऑर्डर से स्टार्ट किया तो क्या हुआ, सपोज अगर ऑर्डर वन के तो हमें नॉन जीरो दिख रहे हैं कई सारे, लेकिन ऑर्डर टू का सपोज आपने ये वाला सिलेक्ट किया और सपोज इसकी वैल्यू जीरो आ जाती, सपोज मतलब इस केस में तो मुझे ऐसा कोई नंबर नहीं दिख रहा है, बट सपोज ये नंबर ऐसे होते हैं 4 3 2 6, सपोज ये वाला माइनर आप सिलेक्ट कर लेते, तो 4 3 जा 12 -6 2 जा 12, तो 12 - 12 क्या हो गया, जीरो। तो इस माइनर की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो आप क्या बोलोगे कि हमें ऑर्डर वन के तो कई सारे नॉन जीरो मिल गए सॉरी, कि सपोज ये 6 है, वो भी ऑर्डर वन का है और नॉन जीरो है, और ऑर्डर टू का हमें एक नॉन जीरो, एक माइनर ऐसा मिला जिसकी वैल्यू जीरो हो गई, तो ऑर्डर टू के जीरो हो गए और ऑर्डर वन का नॉन जीरो हो गया, तो आप क्या बोलोगे, रैंक वन होगी। लेकिन रैंक वन कब होगी, जब वन का तो हमें नॉन जीरो मिलना चाहिए, लेकिन ऑर्डर टू के जितने भी माइनर्स हैं वो सारे के सारे जीरो होने चाहिए। हमने तो केवल एक चेक किया जो जीरो आ गया, वो तो हो सकता है कोइंसिडेंटली हमें ये जीरो मिल गया, हम दूसरा 2/2 का लेते, हो सकता है वो नॉन जीरो होता, हो सकता है दूसरा लेते वो भी जीरो आ जाता, तो भी हम रैंक टू नहीं बोलेंगे। जब तक ऑर्डर टू के हम सारे के सारे माइनस चेक नहीं कर लेंगे तब तक हम उसकी रैंक टू सॉरी वन नहीं बोल सकते हैं। सो इसमें हमें क्या करना है, इसके जितने पॉसिबल 2/2 के माइनस हैं हम वो सारे चेक करने पड़ेंगे, वो जीरो हो गए उसके बाद भी फिर हम ये नहीं बोल सकते रैंक वन है, क्योंकि फिर ऑर्डर थ्री के भी हमें चेक करने हैं, वो भी जीरो होने चाहिए, तभी तो रैंक वन होगी। कि रैंक वन से ज्यादा वाले जितने भी माइनर्स हैं वो सारे जीरो होने चाहिए, तो हमने 2/2 के जितने पॉसिबल थे वो सब चेक कर लिए, सपोज वो सारे जीरो आ गए, एक भी नॉन जीरो मिल जाता तो रैंक एटलीस्ट टू होती, फिर हम 3/3 के चेक करते, जहां पर भी नॉन जीरो मिल जाएगा उसके आगे वाला ऑर्डर फिर हमें चेक करना है, तो फिर हमें 3/3 का चेक करना होता। अगर 3/3 का अगर सपोज क्योंकि इस केस में एक ही बनेगा क्योंकि 3/3 की मैट्रिक्स है, सो ऑर्डर थ्री का जो माइनर होगा वो एक ही होगा, वो इटसेल्फ डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो आप वो चेक कर लीजिए, क्योंकि वो एक ही है इसलिए अगर वो जीरो आ गया तो उसकी रैंक थ्री से कम होगी, क्योंकि मैक्सिमम ऑर्डर हमने चेक कर लिया वो तो जीरो है, तो यानी उसकी रैंक थ्री तो नहीं हो सकती, तो उससे कम होगी, फिर हम 2/2 पर चेक कर लेंगे। तो आप, मेरा सजेशन ये है, यू स्टार्ट फ्रॉम द मैक्सिमम ऑर्डर, क्योंकि मैक्सिमम ऑर्डर से हमें क्लियर हो जाएगा कि क्योंकि लार्जेस्ट ही हमें सर्च करना है, तो आप मिनिमम से चलोगे तो आपको मैक्सिमम तक जाना पड़ेगा, क्योंकि लार्जेस्ट ऑर्डर जो होगा वो हमारी रैंक होगा।
तो लार्जेस्ट से ही आप स्टार्ट करिए। लार्जेस्ट अगर हमें नॉन जीरो मिल गया मैक्सिमम, तो वही हम क्या बोल देंगे कि इसकी रैंक 3 होगी। क्यों? क्योंकि 3 से आगे तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो 4 के हमें चेक ही नहीं करने, हमें 3 ऑर्डर का एक नॉन जीरो मिल गया यानी इसकी रैंक 3 होगी। तो हम लार्जेस्ट से स्टार्ट करेंगे, लार्जेस्ट ऑर्डर माइनर से। सो सपोज जैसे इस मैट्रिक्स में है, इसका मैक्सिमम माइनर क्या बनेगा 3/3 का, क्योंकि मैट्रिक्स की रैंक क्या है, सॉरी ऑर्डर क्या है 3/3। सो 3/3 का एक माइनर बनेगा, एक ही, क्योंकि 3/3 ऑर्डर है तो इसलिए एक ही माइनर बनेगा ऑफ ऑर्डर 3। वो क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। सो वो पहले हम वही चेक कर लेते हैं। तो डिटरमिनेंट ए आपको चेक करना आता है कैसे? -1 6 इंटू 3 -1 इंटू 1, 0 इंटू 3 इंटू 3, सॉरी 1 इंटू -5 -3 इंटू 3, 6 इंटू 3 इंटू 1 -6 इंटू -5। सो हमने डिटरमिनेंट वैल्यू चेक कर ली और वो क्या आ गई? नॉन जीरो आ गई। यानी इस मैट्रिक्स में हमें एक 3/3 ऑर्डर का माइनर मिल गया जिसकी वैल्यू क्या है? नॉन जीरो। तो इसकी रैंक एटलीस्ट 3 होगी। अब 3 से आगे के जितने माइनर्स होंगे अगर वो सारे जीरो हो गए तो हम बोलेंगे कि इसकी रैंक 3 होगी। लेकिन इसमें ऑर्डर 4 का तो कोई माइनर है ही नहीं, क्योंकि इसका ऑर्डर ही क्या है 3/3। सो ऑर्डर 4 का कोई माइनर बनेगा नहीं। तो ऑर्डर 4 के हमें चेक ही नहीं करने, तो इसका मैक्सिमम ऑर्डर से हमने स्टार्ट किया 3/3 और वो नॉन जीरो आ गया, यानी इसकी रैंक क्या होगी? 3। क्योंकि लार्जेस्ट रैंक क्या है? इज द ऑर्डर ऑफ लार्जेस्ट नॉन जीरो माइनर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो हमने मैट्रिक्स ए के मैक्सिमम माइनर से स्टार्ट कर लिया, वही हमें नॉन जीरो मिल गया है, तो उसकी रैंक क्या होगी? 3। Clear? So we have a minor of order 3 which is non-zero. So therefore rank of matrix is 3. अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। अगेन इस केस में भी क्या है, जो मैट्रिक्स है वो 3/3 की है, तो हम हाईएस्ट ऑर्डर माइनर से स्टार्ट कर लेते हैं। सो मैक्सिमम ऑर्डर क्या बनेगा? 3/3, यानी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ ए। सो हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए सॉल्व किया, वो आ गया 0। 0 आ गया, दैट मीन्स जो लार्जेस्ट उस जो मैक्सिमम माइनर बन रहा था, मैक्सिमम ऑर्डर्ड माइनर, उसकी वैल्यू 0 होगी। और अब 3/3 का कोई और दूसरा तो माइनर है नहीं, एक ही माइनर है, वो 0 हो गया, यानी इसकी रैंक अब लेस देन 3 होगी। अगर सपोज 3/3 के और भी माइनर्स बनते तो हम एक के 0 होने पर नहीं बोलेंगे कि 3 से कम होगी, हम सारे जब 0 हो जाएंगे तभी बोलेंगे कि रैंक लेस देन 3 होगी। सो 3/3 के जितने पॉसिबल थे हमने सारे चेक कर लिए, एक ही पॉसिबल था वो 0 आ गया, तो इसकी रैंक 3 नहीं हो सकती है, तो 3 से कम होगी, इट वुड बी लेस देन 3। सो अब 2/2 ऑर्डर का कोई भी माइनर चेक कर लेते हैं। सो ऑर्डर 2 के कई सारे एग्जिस्ट करते हैं, हमें एक नॉन जीरो चाहिए। अगर सारे के सारे जीरो होंगे, सारे 2/2 ऑर्डर के जीरो होंगे, तभी हम बोलेंगे कि इसकी रैंक लेस देन 2 होगी। सो 2/2 का आप कोई भी चेक कर लीजिए, कई सारे हैं, 3 4 4 5। सो 3 इंटू 5 15 -4 इंटू 4 16, तो 15 -16 -1, तो यही हमें नॉन जीरो मिल गया। क्लियर? बाकी कई सारे हैं, 2 इंटू 5 4 इंटू 3, तो 10 -12, 1 इंटू 4 3 इंटू 2 4 -6। सो हमें केवल एक चाहिए नॉन जीरो। 3 ऑर्डर के सारे चेक कर लिए, वो सारे 0 हैं। अब 2/2, सो रैंक इज नॉट इज इक्वल टू 3। रैंक इज नॉट इक्वल टू 3, क्यों? क्योंकि 3/3 ऑर्डर के सारे माइनस 0 हो गए, एक ही था वो 0 है। नाउ इट मस्ट बी लेस देन 3, तो कंसीडर अ माइनर ऑफ ऑर्डर 2। अब ऑर्डर 2 का आप कोई भी चेक कर लीजिए, जब तक आपको नॉन जीरो ना मिले तब तक आपको सारे माइनस चेक करने पड़ेंगे। तो पहले ही 1 इंटू 4 माइनस ये 2/2 का है। क्लियर? ये वाला जो माइनर है वो 2/2 का है। सो 4 -6 -2 विच इज नॉन जीरो। सो हमें एक ऑर्डर एक माइनर मिल गया जो ऑर्डर 2 का है और जिसकी जो नॉन जीरो है। सो देयर इज एटलीस्ट अ माइनर ऑफ ऑर्डर 2 विच इज नॉन जीरो, एंड ऑर्डर 2 से आगे के जितने भी माइनर्स हैं वो सारे जीरो है, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। क्या दो कंडीशंस थी? अगर आप रैंक आर नंबर आर को बोल रहे हो, इट इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर विच इज नॉन जीरो। उस ऑर्डर का एक माइनर हमें नॉन जीरो मिल गया, और उस ऑर्डर से आगे के से ज्यादा ऑर्डर के जितने भी माइनर्स है वो सारे जीरो हो गए। सो रैंक क्या होगी? आर। सो हमने 3 से स्टार्ट किया, ऑर्डर 3 के सारे माइनस 0 हो गए, ऑर्डर 2 का हमें एक नॉन जीरो मिल गया। सो हमें 2 एक नंबर मिला, ऑर्डर 2 का एक माइनर नॉन जीरो मिला, और ऑर्डर 2 के आगे के जितने भी माइनर से, ऑर्डर 2 से ज्यादा के जितने माइनर से वो सारे 0 हो गए। सो इसकी रैंक क्या होगी? 2। क्लियर? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। नाउ दिस मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है? 3/4, 3 रोज 4 कॉलम्स। क्लियर?
सो इसका मैक्सिमम माइनर क्या बनेगा 3/3 का, 4/4 का तो बन नहीं सकता, क्योंकि 4/4 के लिए क्या चाहिए, फोर्थ रो और चाहिए, वो तो है ही नहीं। इसका ऑर्डर क्या है 3/4। सो इसका मैक्सिमम सब मैट्रिक्स, स्क्वायर सब मैट्रिक्स क्या बनेगा 3/3 का। कोई 3/3 के कई सारे बनेंगे, बट 4/4 का कोई नहीं होगा, और 4/4 का कोई नहीं होगा, इसलिए यानी इसकी रैंक 4 नहीं हो सकती है। अब हम मैक्सिमम माइनर जो बनेगा वो क्या बन रहा है 3/3 का, तो हम 3/3 का चेक कर लेते हैं। सो 3/3 के कितने बनेंगे, 4 कॉलम्स हैं, आपको 3 कॉलम सेलेक्ट करने हैं। तो 4C3 जो वैल्यूज होगी यानी 4, तो 4C3 सॉल्व करके क्या आता है 4, तो इसके 4 3/3 ऑर्डर के माइनर्स बनेंगे। तो आपको चारों चेक करने हैं, अगर एक भी नॉन जीरो मिल गया तो उसकी रैंक 3 हो जाएगी, क्योंकि उसके आगे के ऑर्डर के हमारे पास माइनर है नहीं। सो ऑर्डर 3 का अगर हमें नॉन जीरो माइनर मिल गया तो उसकी रैंक 3 हो जाएगी, क्योंकि 4/4 का कोई माइनर नहीं है। और ऑर्डर 3 के अगर सारे जीरो हो गए, सारे मतलब 4 इस केस में एग्जिस्ट करेंगे, देयर आर 4 माइनर्स ऑफ ऑर्डर 3। अगर चारों के चारों जीरो होंगे तो उसकी रैंक लेस देन 3 होगी। सो इसमें लिखा हुआ है if the matrix is of order 3/4 so its rank is less than or equal to minimum of 3/4। तो उसकी रैंक मैक्सिमम क्या हो सकती है 3, वो मैंने आपको रीजन बता दिया, क्योंकि इसमें 4/4 का कोई माइनर नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमम माइनर क्या मिलेगा 3/3 ऑर्डर का, तो उसकी रैंक 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, therefore the highest order of the minor will be 3। let us consider the minor। अब माइनर्स क्या बनेंगे 3/3 के, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फर्स्ट कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, ऐसी सेकंड, थर्ड, फोर्थ कॉलम, ऐसे 4 माइनर्स बनेंगे। क्लियर। हमें क्या करना है, रो तो पूरी रखनी है 3/3 के लिए, और 4 कॉलम में से कोई भी 3 लेने हैं। तो आप ये तीनों ले लीजिए, वो भी एक 3/3 का होगा। आप ये तीनों ले लीजिए, वो भी 3/3 का होगा। आप ये दोनों प्लस ये ले लीजिए, तो भी 3/3 का है। आप ये और ये तीनों लेंगे तो भी 3/3 का है। तो 4 ऐसे माइनस एग्जिस्ट करेंगे। आपको क्या करना है, चारों चेक करना है, एक भी नॉन जीरो मिल गया तो उसकी रैंक 3 हो जाएगी। चारों जब जीरो हो जाएंगे तब हम बोलेंगे रैंक इज लेस देन 3, फिर हम 2/2 माइनस पर जाएंगे। तो कोई भी आप इन्होंने 3/3 का फर्स्ट वाला ले लिया है, ये वाला 3/3 ऑर्डर का, और उसकी इसका माइनर मतलब डिटरमिनेंट वैल्यू चेक कर लिया है। तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जैसे ही चेक करोगे वो कितनी आ रही है 24 आ रही है। डिटरमिनेंट आप सबको सॉल्व करने आता है। 24 इज नॉट इक्वल टू 0, सो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर इज 3, सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 3। पहला ही माइनर मिल गया 3 ऑर्डर का जो नॉन जीरो मिल गया, तो इसकी रैंक क्या होगी 3, क्योंकि 4/4 ऑर्डर का कोई माइनर नहीं है, इसलिए वो हमें चेक नहीं करना। क्लियर। एक और थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, फॉर विच वैल्यू ऑफ बी द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 2। सो पहले तो इस मैट्रिक्स को अगर हम देखें, ये क्या है 3/3 का मैट्रिक्स है। ये बोल रहे हैं कि बी, इसमें एक बी अननोन वैल्यू है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन कि इस बी की किस वैल्यू के लिए इस मैट्रिक्स की रैंक 2 होगी। अब आपको पता है कि 3/3 मैट्रिक्स की अगर रैंक सॉरी मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर की, तो उसकी मैक्सिमम रैंक क्या होगी 3। और वो 3 कब होगी, जब इसका 3/3 ऑर्डर का जो माइनर होगा, जो कि इसका डिटरमिनेंट वैल्यू होगी, क्योंकि 3/3 का ही मैट्रिक्स है, तो मैक्सिमम माइनर यही बनेगा इसका डिटरमिनेंट। तो इसका डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो आ गया, तो यानी 3/3 ऑर्डर का हमें माइनर क्या मिल जाएगा नॉन जीरो, तो इसकी रैंक 3 होगी। लेकिन हमें 3 रैंक तो नहीं चाहिए, वो रैंक क्या बोल रहा है 2 रैंक होगी। 2 कब होगी, जब इसका 3/3 ऑर्डर के सारे माइनस जीरो होंगे। और 3/3 ऑर्डर के कितने माइनर हैं, एक ही माइनर है, ये इटसेल्फ इसका डिटरमिनेंट। सो इसका डिटरमिनेंट अगर 0 आ गया तो हम बोलेंगे कि जो रैंक होगी दैट वुड बी लेस देन 3, यानी वो क्या होगी 2 होगी। सो हमने क्या कर दिया, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। जब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज जब 0 होगा तभी हम बोलेंगे कि इसकी रैंक लेस देन 3 होगी। सो हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट किया इस मैट्रिक्स से, वो कितना आ गया 4 - 2b। सो 4 - 2b। सो इफ रैंक ऑफ ए इज 2, इन्होंने दिया है कि रैंक ऑफ ए इज 2, तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, क्योंकि 3/3 रैंक 2 बोल रहे हो, तो 2/2 ऑर्डर के माइनर नॉन जीरो होना चाहिए, और 2 से आगे के जितने भी माइनर्स हैं यानी 3 ऑर्डर के, फोर्थ ऑर्डर, वो सारे 0 होना चाहिए। सो 3/3 ऑर्डर का माइनर क्या होगा डिटरमिनेंट ए, उसकी वैल्यू जब 0 होगी तभी तो रैंक 2 होगी। सो इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होना चाहिए 0। सो डिटरमिनेंट कितना था 4 - 2b,
सो 4 माइनस 2b की वैल्यू जीरो होना चाहिए। वो कब होगी? जब 4 इज इक्वल टू 2b होगा, यानी b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो जस्ट थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, वही रैंक पर बेस्ड, बट उन्होंने अब रैंक आपको डिफाइन कर दिया कि रैंक इसकी 2 है तो बी की वैल्यू क्या होगी। सो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 होना चाहिए फॉर रैंक 2। सो रैंक 2 जब होगी तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 होगी, और डिटरमिनेंट ए आ रहा है 4 माइनस 2b। सो 4 माइनस 2b 0 कब होगा? जब b की वैल्यू 2 होगी। सो दीज आर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन माइनर्स। So now some characteristics, some properties of rank for an m cross n matrix. The rank of A is less than or equal to minimum of mn. यानी किसी भी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर m बाय n है तो उसकी रैंक इज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ mn, यानी उस ऑर्डर में जो मिनिमम वैल्यू है। जैसे अगर सपोज मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/4, क्योंकि तो 3/4 में आपको पता है मैक्सिमम माइनर जो बनेगा ऑर्डर, माइनर ऑफ मैक्सिमम ऑर्डर, वो क्या होगा? 3/3। तो इन दोनों में जो कम है उससे रैंक कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती। सो मिनिमम ऑफ mn, so rank cannot be greater than that value. Rank of A is always less than or equal to minimum of order. So 3/4 का अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक मैक्सिमम क्या होगी? 3। क्लियर? नेक्स्ट, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर n, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है? n, यानी 3/3, 4/4, 6/6, इस टाइप की मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, देन रैंक ऑफ A इज n इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमने क्वेश्चन कर लिए तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या कहना चाह रहा है ये प्रॉपर्टी। आपको पता है सपोज एक 3/3 की मैट्रिक्स है, तो वो क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3। सो ऑर्डर 3 मैट्रिक्स की रैंक कब 3 होगी? जब उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू नॉन जीरो होगी, क्योंकि उसमें वही मैक्सिमम माइनर है। तो 3/3 मैट्रिक्स के लिए जो मैक्सिमम माइनर है वो क्या होगा? 3/3 का ही होगा, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए ही होगा। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर नॉन जीरो आ गया तो उसकी रैंक 3 हो जाएगी। तो वही ये एप्लीकेशन है। ठीक है? फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, द रैंक इज n व्हेन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो। अदरवाइज अगर डिटरमिनेंट जीरो आ गया तो उसकी रैंक क्या होगी? लेस देन n होगी। द रैंक ऑफ अ नल मैट्रिक्स means null matrix is the only matrix whose rank is 0। अदरवाइज जितनी भी मैट्रिक्स है उन सब की रैंक एटलीस्ट 1 होगी। क्यों? आपको एग्जांपल देके समझ में आया होगा। अगर क्योंकि ऑर्डर 1 के तो हमें कई सारे माइनस दिख रहे हैं ना इसमें नॉन जीरो। अगर ये सारे के सारे ही जीरो एलिमेंट हो गए तभी हम बोलेंगे कि ये तो ऑर्डर 1 के सारे माइनस जीरो हो रहे हैं। लेकिन अगर एक भी हमें एलिमेंट नॉन जीरो मिल गया तो उसकी रैंक एटलीस्ट 1 तो होगी। इस मैट्रिक्स की रैंक 0 कब होगी? जब सारे के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं। क्यों? क्योंकि 1/1 ऑर्डर के जितने भी माइनस है वो सारे 0 होने चाहिए। तो 1/1 यानी सारे एलिमेंट इंडिपेंडेंटली 0 होना चाहिए। सो केवल नल मैट्रिक्स ऐसी है जिसकी रैंक 0 होती है, अदरवाइज जितनी भी मैट्रिक्स है उन सबकी रैंक एटलीस्ट 1 होगी। एवरी नॉन नल मैट्रिक्स हैज रैंक ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। और ये वाइसे वर्सा है। रैंक ऑफ अ नल मैट्रिक्स इज 0, and if rank of a matrix is 0 then it must be a null matrix. Next, rank of an identity matrix of order n is always n। क्यों? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते हो, मैंने आपको बताया था ये। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर 3 ऑर्डर की है तो आपको पता है इसका डिटरमिनेंट क्या होता है? 1। द डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज 1। 1 मतलब नॉन जीरो। तो हमेशा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वही उसकी रैंक होगी। 2/2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी तो उसका रैंक क्या होगी? 2। 3/3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी तो उसका ऑर्डर उसकी रैंक क्या होगी? 3, क्योंकि इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, कभी भी 0 नहीं होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू। सो this is the next part. Rank of an identity matrix of order n is always n। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक। आप ऐसा नहीं होगा कि भाई अलग अलग एप्लीकेशन आप लगाओ, अलग अलग ऑपरेशन लगाओ, अलग अलग मेथड, अगर क्योंकि हमारे रैंक के पास अभी आपके पास एक ही मेथड है माइनर, बट हमारे पास 2 और मेथड हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, जिनको हम इक्विवेलेंट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। तो हम किसी भी मेथड से अगर रैंक को फाइंड आउट करेंगे
तो उसकी रैंक क्या होगी, यूनिक होगी, चाहे आप इक्लोन फॉर्म से निकालिए, चाहे नॉर्मल फॉर्म से निकालिए, चाहे माइनर मेथड से। द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑलवेज यूनिक नंबर, वो एक ही नंबर है, कभी चेंज नहीं होगा किसी भी मेथड से आप अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज इनवेरिएंट अंडर एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब ये है, अगर आपको सपोज कोई मैट्रिक्स ए दिया है, आप उस पर कितने भी एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा लीजिए। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको डिफाइन किया था, क्या होते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, वो 3 टाइप के होते हैं ये। सो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म, तो किसी भी मैट्रिक्स पर आप कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर दीजिए, किसी भी मैट्रिक्स पर किसी भी टाइप का आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दीजिए, चाहे रो में चाहे कॉलम में, उसकी रैंक चेंज नहीं होगी। क्लियर? तो ये हम यूज करेंगे, इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज इनवेरिएंट अंडर एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। उस मैट्रिक्स पर हम कितने भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा दें, कितने भी एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा दें, उसकी रैंक चेंज नहीं होगी। ठीक है? सो दिस वाज अबाउट द माइनर मेथड। नेक्स्ट वी हैव सम रिमार्क. So, remark. What is remark? Find the rank of a matrix using minors is very laborious task. जैसे आपको बोला कि अगर सपोज ये तो 3/3 के हैं, तो आपने 3 से ही स्टार्ट कर लिया। अदरवाइज सपोज ये एग्जांपल देखिए, इसका ऑर्डर क्या है, 3/4 सपोज, तो इसके मैक्सिमम माइनस जो ऑर्डर होगा माइनस का, वो क्या होगा, 3/3। 3/3 के 4 बनेंगे, तो आप पहले 3/3 के, सपोज ये पहला 0 हो जाता, फिर आप क्या करते, दूसरा 3/3 का चेक करते, सपोज वो भी 0 हो जाता, फिर आप तीसरा 3/3 का चेक करते, वो भी 0 हो जाता, सपोज फोर्थ जाके नॉन 0 होता, तो आपने इतने डिटरमिनेंट सॉल्व किए तब आपको रैंक मिली। सिमिलरली अगर वो सपोज चौथा भी 0 हो जाता, तो यानी आपने 4 डिटरमिनेंट चेक किए 3/3 के और चारों 0 आ गए, अब आपने डिसाइड किया कि रैंक लेस देन 3 होगी, फिर आप 2/2 के चेक करोगे जब तक नॉन 0 ना मिले, तब आप डिसाइड कर पाओगे व्हाट इज रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स। सो इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ये जो मेथड है यूजिंग माइनर्स मींस फाइंडिंग आउट द रैंक यूजिंग माइनर्स, इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो क्योंकि आपको पता है कई सारे इसमें वैल्यूएशंस ऑफ नंबर ऑफ माइनस, कई सारे माइनस की वैल्यू आपको चेक करनी पड़ेगी। सो वी विल यूज इकोलॉन फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स टू फाइंड इट्स रैंक। सो हम क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि एग्जामिनर विल नॉट आस्क यू दैट यूज दिस मेथड टू फाइंड आउट द रैंक। एटलीस्ट आपको ये पूछ सकता है कि यूज इकोलॉन फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म, बट आपको कभी भी माइनर मेथड से वो रैंक नहीं पूछेगा। सिंपली क्वेश्चन या तो ये होगा, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, और फाइंड द मैट्रिक्स, सॉरी, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग इकोलॉन फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। तो आपको अगर चॉइस है, मींस ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि माइनर से कभी पूछा नहीं जाएगा क्वेश्चन, बट अगर सिंपल क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, सो यू कैन यूज एनी ऑफ द मेथड्स, यू कैन यूज अ माइनर मेथड और इकोलॉन फॉर्म मेथड और नॉर्मल फॉर्म मेथड। बट अगर उन्होंने मेंशन किया है कि यूज दिस पर्टिकुलर मेथड टू फाइंड द रैंक, तो आपको उसी मेथड से करना है। क्लियर? सो वी हैव 2 मेथड्स other than minor method, echelon form method and normal form method. So let us see one by one what is echelon form method, what is normal form method. And before this, one more term is there, that is nullity of a matrix. Now you know what is rank of a matrix. Rank of a matrix is the order of largest non-zero minor of that matrix. Clear? That is the definition. Now what is nullity of a matrix? So suppose, so nullity, to define the nullity we must know the rank of that matrix, because it is n minus r. The nullity is n minus r, where n is the number of columns in that matrix and r is the rank of that matrix. So we must know two numbers, how many columns are there in the matrix and what is rank of that matrix, and difference of that number of columns in A minus rank of A,
This difference is called nullity of A. Clear? So what is nullity? If a matrix is of order m by n, so m number of rows and n number of columns, then nullity of that matrix is defined as n minus r, where r is rank of that matrix. Clear? So n is the number of columns and r is the rank of that matrix. So अगर आपको nullity का भी question आ रहा है तो भी आपको rank find out करनी है. Clear? So अगर somebody ask you the what is nullity of a matrix, so you define this as what is rank of means first you find out what is the rank of that matrix and how many columns are there in the matrix. So number of columns in matrix minus rank of that matrix. This difference is nullity of A. तो आपको n चाहिए, सो n तो आपको देखने से ही मिल जाएगा कि उस रैंक में जितने कॉलम्स हैं दैट इज n एंड माइनस r ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो व्हाट इज रैंक? सो नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस रैंक इज इक्वल टू nullity of A. क्लियर? And again row rank and column rank of a matrix are same because I already told you that rank of a matrix is unique. तो आप रो रैंक बोल रहे हो या कॉलम रैंक बोल रहे हो, दैट इज दीज नंबर्स आर ऑलवेज सिंगल नंबर. जो किसी भी मैट्रिक्स की जो रो रैंक होगी वही कॉलम रैंक भी होगी. इसको थोड़ा और एलेबोरेट हम इन दोनों रिमार्क्स को करेंगे आगे जब हम यूज करेंगे, क्योंकि दूसरा अभी आपको समझ में नहीं आएगा. दिस इज नलिटी ऑफ होमोजीनियस सिस्टम. अभी आपको होमोजीनियस सिस्टम नहीं पता है, उसमें टोटल सॉल्यूशंस कितने हैं वो नहीं पता है. तो व्हेनेवर वी स्टडी दिस टॉपिक solution of homogeneous system, then at that time we will define what is nullity of homogeneous system. So now the first form, echelon form of a matrix. So using echelon form of a matrix, we can tell that what is the rank of matrix. Means if we have to calculate, means we have to find out that what is the rank of a matrix. First, we will convert that matrix into echelon form, and if the matrix is in echelon form, then we can tell that what is the rank of that matrix. So first, we must know what is echelon form of matrix. Means how to convert a matrix into echelon form. अगर कोई भी मैट्रिक्स किस फॉर्म में होगी तब जब हम बोलेंगे कि ये तो इक्लोन फॉर्म है. सो उस इक्लोन फॉर्म को आपको बताना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स को कब हम बोलते हैं कि दिस मैट्रिक्स इज इन इक्लोन फॉर्म. सो देयर आर 3 कंडीशंस. सो अगर ये 3 कंडीशन वो कोई भी मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है तो हम बोलते हैं दैट मैट्रिक्स इज इन इक्लोन फॉर्म. वो इक्लोन फॉर्म में है, वो मैट्रिक्स इक्लोन फॉर्म में है. सो व्हाट आर दीज 3 कंडीशंस? A matrix is in row echelon form. अब देखिए यहाँ 2 टर्म है, रो इक्लोन फॉर्म और कॉलम इक्लोन फॉर्म. क्लियर? तो अभी हम रो इक्लोन फॉर्म की बात कर रहे हैं. बाकी सब कंसेप्ट सेम है. कॉलम इक्लोन फॉर्म बस हम सारी डेफिनेशंस में, सारी कंडीशन में रो की जगह कॉलम यूज कर लेंगे तो हमें कॉलम इक्लोन फॉर्म मिल जाएगा. सो इक्लोन फॉर्म मीन्स 2 तरह के इक्लोन फॉर्म है, रो इक्लोन फॉर्म एंड कॉलम इक्लोन फॉर्म. तो जो कंडीशन रो इक्लोन फॉर्म की है इन टर्म्स ऑफ रो, वही सारी कंडीशंस हैं कॉलम इक्लोन फॉर्म की इन टर्म्स ऑफ कॉलम्स. केवल हमें रो और कॉलम को चेंज करना है, बाकी सारी कंडीशंस सेम होती हैं. सो अब हम क्या डेफिनेशन लिख रहे हैं? अ मैट्रिक्स इज इन रो इक्लोन फॉर्म if the following are satisfied. Following 3 conditions are satisfied. Now what is first condition? If the ith row contains all zeros. अगर कोई पर्टिकुलर रो है जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हैं, इट इज ट्रू फॉर ऑल सबसीक्वेंट रोज. तो अगर किसी आयत रो के सारे एलिमेंट जीरो हैं तो उसके आगे की जितनी भी रो होंगी उसके भी सारे एलिमेंट जीरो होंगे. लाइक दिस, इसकी थर्ड रो के सारे एलिमेंट जीरो हैं तो फोर्थ रो के भी सारे एलिमेंट जीरो हैं, फिफ्थ रो के भी सारे जीरो होंगे, सिक्स रो के भी जीरो होंगे. अगर आगे की जितनी भी रोज हैं वो सारे जीरो होंगे. जैसे इस केस में ऐसी रो, ये थर्ड रो है जिसके सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो इसके आगे कोई रो नहीं है तो हमें चेक नहीं करना है. बट अगर उसके आगे कोई रो होती तो उसके भी सारे एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो होते हैं. सिमिलरली यहाँ पर ऐसी कोई रो ही नहीं है जिसके सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो हमें ये कंडीशन चेक ही नहीं करनी है. सो व्हाट इज दिस कंडीशन? व्हाट इज फर्स्ट कंडीशन? इफ ith रो contains all zeros,
then it is true for all subsequent rows. So what is first condition? If the ith row contains all zeros, किसी भी रो में अगर सारे एलिमेंट जीरो हैं तो इट इज ट्रू फॉर ऑल सबसीक्वेंट रोज, आगे की सारी रो में भी सेम प्रॉपर्टी सेम रूल फॉलो होगा, यानी आगे के भी सारे रो के सारे एलिमेंट जीरो होंगे। अगर ऐसा है तो, अगर ऐसी कोई रो है ही नहीं जिसकी सारे एलिमेंट जीरो है तो हमें चेक ही नहीं करना। सो वी हैव एग्जांपल, इसमें कोई रो जीरो नहीं है, चेक नहीं करना। इसमें लास्ट रो जीरो है तो आगे की रो जीरो, मतलब आगे की कोई रो नहीं है वो भी चेक नहीं करना है। इसमें थर्ड रो जीरो है तो उसके आगे की रो के भी सारे एलिमेंट जीरो है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड कंडीशन। सेकंड से पहले मैं थर्ड कंडीशन एलेबोरेट करता हूँ। व्हाट इज थर्ड कंडीशन? रोज कंटेनिंग ऑल जीरोस ऑकर ओनली आफ्टर ऑल नॉन जीरो रोज। मतलब अगर हम फर्स्ट का एप्लीकेशन ही देखें, फर्स्ट और थर्ड में कोई डिफरेंस नहीं है। सो ये क्या कहता है कि जितनी भी जीरो रोज हैं वो बॉटम में होंगी, मतलब नॉन जीरो रो के बाद होगी। देखिए ये भी नॉन जीरो, एंड नाउ व्हाट इज जीरो रो और व्हाट इज नॉन जीरो रो? जीरो रो वो होगी वेयर ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, और नॉन जीरो रो वो होगी वेयर एटलीस्ट वन एलिमेंट इज नॉन जीरो। दिस इज नॉन जीरो रो, व्हाई? बिकॉज वी हैव वन एटलीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉन जीरो। दिस इज जीरो रो, क्यों? इसमें सारे एलिमेंट जीरो हैं। दिस इज जीरो रो, क्यों? इसमें सारे एलिमेंट जीरो हैं। लेकिन एक भी एलिमेंट अगर नॉन जीरो हो गया, सपोज दिस इज नॉन जीरो रो, क्यों? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट हमारा नॉन जीरो है। जीरो रो वो है जिसमें सारे एलिमेंट जीरो होंगे, उसके अलावा जितनी भी रोज हैं वो सारी क्या है? नॉन जीरो रोज। तो ये थर्ड कंडीशन क्या है? रोज कंटेनिंग ऑल जीरोस ऑकर ओनली आफ्टर ऑल नॉन जीरो रो। जितनी भी जीरो रोज हैं जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हैं वो हमेशा नॉन जीरो रो के बाद आएंगी। ऐसा नहीं है कि ये रो उठा के आप यहाँ रख दोगे, या फिर ये वाली रो उठा के आप यहाँ रख दोगे, या बीच में कहीं रख दोगे। नो, ऑल दी जीरो रो मस्ट बी एट दी बॉटम। वो सारी की सारी क्या होंगी? बॉटम में होंगी, नॉन जीरो रो के बाद होगी। सो दीज आर सेकंड नेक्स्ट कंडीशन, means these are two condition. Now the important one, which is second condition. So if a column contains, हम किसकी बात कर रहे हैं? रो कॉलम इकोलन फॉर्म की बात कर रहे हैं। So the second, if a column contains a non-zero entry of any row, इसका मतलब है कोई भी कॉलम अगर किसी देखिए इस लाइन का मतलब ये है, इफ अ कॉलम कंटेन्स द फर्स्ट, इसमें ऐसा होना चाहिए फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ एनी रो। इफ अ कॉलम कंटेन्स फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ एनी रो। देखिए इस रो की फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट क्या है? 1। इस रो की सेकंड रो की फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट क्या है? 5। इस रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री क्या है? 9। तो वो ये कह रहा है कंडीशन, अगर किसी कॉलम में, मीन्स सपोज फर्स्ट कॉलम में बात करें, फर्स्ट कॉलम में एक एलिमेंट है जो किसी रो का फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है, तो इसके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। अगर हम सेकंड कॉलम की बात करते हैं तो सेकंड कॉलम में 3 जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री नहीं है। देखिए फर्स्ट रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री नहीं है, वो क्या थी? 1। तो हम इसको चेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट 5 है इस कॉलम में, तो 5 क्या है? सेकंड रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर है, तो इसके नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे जीरो होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम थर्ड कॉलम की बात करते हैं तो थर्ड कॉलम में देखिए 5 जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री नहीं है किसी भी रो की। 4 जो है वो भी किसी भी रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री नहीं है, और ये तो जीरो ऑलरेडी है, तो इसमें हमें कुछ चेक नहीं करना। नेक्स्ट कॉलम में अगर हम बात करें तो 7 जो है वो इस रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री नहीं है, इसलिए इसको छोड़िए। 1 जो है वो इस रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री नहीं है, इसको छोड़िए। 9 जो है वो थर्ड रो की फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है, तो इसके नीचे अगर कोई एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या होना चाहिए? जीरो होने चाहिए। क्लियर? 9 के नीचे अगर कोई एलिमेंट होते हैं उन सबको हमें क्या बनाना है? जीरो बनाना है। सिमिलरली देखिए इस कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में 1 जो है वो फर्स्ट रो का नॉन जीरो एलिमेंट है फर्स्ट, तो इसके नीचे जीरो है। सेकंड
सेकंड कॉलम में ये जो एंट्री है, लेकिन ये फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री नहीं है, तो इसके नीचे जीरो है या नहीं है इससे हमें मतलब नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड कॉलम में ये 2 को छोड़िए क्योंकि ये फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री नहीं है। 3 जो है वो सेकंड रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है, तो इसके नीचे जो एलिमेंट है वो जीरो होने चाहिए। सिमिलरली नेक्स्ट कॉलम जो है 3 जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री नहीं है इस रो की, छोड़िए। 5 जो है वो इस रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री नहीं है, छोड़िए। और ये जीरो है, तो इससे हमें आगे चेक ही नहीं करना है। क्लियर? तो आपको क्या करना है, हर एक कॉलम में ये चेक करना है क्या वो किसी रो का फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री रखता है। अगर ऐसा है तो उसके नीचे सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। देखिए ये 1 जो है, आप सिंपली करिए क्या, मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सपोज पहले आप मार्क कर लीजिए जितनी भी हर एक रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है उसको मार्क कर लीजिए। सो ये 1 है, ये 1 है, बस 2 ही है। बाकी तो फर्स्ट जो थर्ड में कोई नॉन जीरो एंट्री है नहीं, फोर्थ में कोई नॉन जीरो एंट्री है नहीं। आपको क्या करना है, ये जो मैंने मार्क किए इन सब इनके नीचे हमें पूरे जीरो बनाने हैं। क्लियर? ऐसे ही अगर हम बाकी देखें तो आपको बस ये रूल चेक करना है। देखिए इसमें ये फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है फर्स्ट रो की, सेकंड रो की ये फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है, थर्ड रो की ये फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है। तो 1 के नीचे सारे जीरो होने चाहिए, 5 के नीचे सारे जीरो होने चाहिए, 9 के नीचे सारे जीरो होने चाहिए। ऐसे ही इसमें फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 है, इसमें सेकंड रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 3 है, बाकी थर्ड रो में कोई नॉन जीरो एंट्री है नहीं। तो आपको केवल 1 के नीचे सारे जीरो होने चाहिए, 3 के नीचे सारे जीरो होने चाहिए। इसमें भी ये 1 है, ये 1 है, तो इसके नीचे जीरो होने चाहिए, इसके नीचे जीरो होना चाहिए। ये हमारी सेकेंड कंडीशन है। So if matrix we call it that this matrix is in row echelon form, तो आपको क्या चेक करना है, ये 3 कंडीशन चेक करनी है। जितनी भी जीरो रोज हैं वो बॉटम में होना चाहिए। अगर कोई भी रो के सारे एलिमेंट जीरो हैं तो उसके नीचे वाली जितनी भी रोज हैं वो भी सारी जीरो एलिमेंट होंगे, मतलब जीरो रो होंगी। और सेकंड कंडीशन जो थी वो यही थी कि इसको हम ये लिखे एवरी if the ith and I plus 1 row are both non-zero rows, then the initial non-zero entry of I plus 1 row appears in later column than that of ith row. मीन्स ये क्या कह रहा है, कोई अगर आयत और नेक्स्ट रो अगर दोनों ही नॉन जीरो रोज हैं, सो इनिशियल नॉन जीरो एंट्री ऑफ द आई प्लस 1 रो, यानी नेक्स्ट वाले की जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है वो बाद वाले कॉलम में होना चाहिए एज कंपेयर टू दी आयत रो। सो सपोज ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है। क्लियर? तो फर्स्ट रो का ये फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 है और सेकेंड रो की नॉन जीरो एंट्री ये है फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री। तो सेकेंड की जो नॉन जीरो एंट्री है, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है, वो हमेशा इसके राइट में होना चाहिए। क्लियर? ऐसे ये 1 है, ये 3 है, तो नेक्स्ट रो का हमेशा राइट में है। सेम ये है तो राइट में है, कभी भी लेफ्ट में नहीं होना चाहिए। मतलब अगर सपोज मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर सपोज ये जीरो होती है एंट्री, ये जीरो है और ये जीरो है, ये 2 है, 0 0 2, तो नेक्स्ट रो में की जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री वो 3 है, वो कभी भी इसके नीचे नहीं आएगी। वो क्या होगी, या तो यहाँ होगी या इसके आगे कहीं होगी, इसके राइट में ऑलवेज होगी, कभी भी इसके नीचे नहीं होगी। मतलब 2 नॉन जीरो एंट्रीज कभी भी एक ही कॉलम में नहीं होगी। देखिए ये नॉन जीरो एंट्री है फर्स्ट, तो इसके नीचे कोई एंट्री नहीं है। ये भी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है सेकंड रो की, तो इसके नीचे कोई एंट्री नहीं है। ऐसे ये भी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री थर्ड होगी, तो इसके नीचे कोई नॉन जीरो एलिमेंट नहीं है। तो ये कंडीशन है। तो अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, देन वी से दैट मैट्रिक्स इज इन रो इक्विवेलेंट फॉर्म। नेक्स्ट व्हाट इज कॉलम इक्विवेलेंट फॉर्म? कॉलम इक्विवेलेंट फॉर्म में जस्ट आपको क्या करना है, सेम ये जो 3 कंडीशन है, वी हैव टू रिप्लेस row by column. Means if the ith column contains all zeros, it is true for all subsequent columns. Columns containing all zeros occur only after all non-zero columns. ऐसे इसमें, तो इसमें हमने क्या चेक किया, जैसे हम जीरो रोज की बात कर रहे थे, बॉटम में होना चाहिए, कॉलम इक्विवेलेंट फॉर्म में वो राइट में होना चाहिए। मतलब जो भी नॉन जीरो कॉलम होंगे वो पहले होंगे, बाकी जीरो कॉलम बाद में हमें रखने हैं। ठीक है? और जो ये एंट्री सेकंड कंडीशन है वो यही कह रहा है कि आपकी
जो अगर हम किसी क्वेश्चन के थ्रू देखें, देखिए कॉलम इक्लोन फॉर्म, ये एंट्री है। तो देखिए जीरो कॉलम जितने भी होंगे वो हमेशा राइट में होंगे, जितने भी जीरो कॉलम है। और हर एक कॉलम में जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है इसकी ये है, और फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 3 है, सेकंड कॉलम की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री क्या है, 5/3 है। तो हम वहां पर क्या करते हैं, क्योंकि हम रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री देखते हैं तो उसके नीचे जीरो देखते हैं, इसके नीचे जीरो देखते हैं, लेकिन ये कॉलम रो इक्लोन फॉर्म है, सॉरी कॉलम इक्लोन फॉर्म है। तो कॉलम इक्लोन फॉर्म में कॉलम की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 3 है, सेकंड कॉलम की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 5/3 है। तो इसके रो में हमें जीरो रखना है कि 3 के आगे सारे जीरो होंगे, 5/3 के आगे सारे जीरो होंगे, इधर कहीं होता तो वो भी जीरो होते। हम एक और चीज देखते हैं, ये देखिए जितने भी जीरो रो कॉलम्स हैं वो राइट में होंगे। ये फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड नॉन जीरो एंट्री ऑफ सेकंड कॉलम। तो इसकी रो में सारे जीरो होंगे, इसकी रो में सारे जीरो होंगे, ये कंडीशंस है। तो सिंपली वी हैव टू रिप्लेस row by column in these three conditions, then we say the matrix is in column echelon form. तो आपको जैसा अगर केवल लिखा है फाइंड द इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, तो आप रो इक्लोन फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, कॉलम इक्लोन फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? सो नेक्स्ट, सो दिस इज रो इक्लोन फॉर्म। नाउ व्हाट इज रैंक ऑफ ए? हमने बता तो दिया है कि द मैट्रिक्स व्हाट इज द इक्लोन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, बट हम पढ़ क्यों रहे हैं? टू फाइंड आउट द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग इक्लोन फॉर्म। तो हमने इक्लोन फॉर्म में तो कन्वर्ट कर दी मैट्रिक्स। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए मैट्रिक्स हमें डायरेक्ट नहीं दिया होगा इक्लोन फॉर्म में, वी हैव टू कन्वर्ट दैट मैट्रिक्स इन इक्लोन फॉर्म। तो हमारे पास क्वेश्चन ये होगा, फाइंड द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स यूजिंग इक्लोन फॉर्म। सो फर्स्ट वी विल रिड्यूस दैट मैट्रिक्स इनटू, वी विल कन्वर्ट दैट मैट्रिक्स इनटू इक्लोन फॉर्म। और इक्लोन फॉर्म में जब आ जाती है तो जो रैंक होती है मैट्रिक्स की वो क्या होती है, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रो इक्लोन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। ये तीनों रो इक्लोन फॉर्म में है। इसमें कितनी नॉन जीरो रोज हैं, 1 2 3, क्योंकि थर्ड रो में भी एक नॉन जीरो एंट्री है तो ये भी नॉन जीरो है, तो इसकी रैंक क्या होगी, 3। इसमें कितनी नॉन जीरो रो है, 1 2, सो इसकी रैंक क्या होगी, 2। इसमें कितनी नॉन जीरो रो है, 1 2, तो इसकी रैंक भी क्या होगी, 2। सो व्हेन अ मैट्रिक्स इज इन रो इक्लोन फॉर्म, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज द रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स। Clear? So this is the definition. Similarly, if a matrix is in column echelon form, then number of non-zero columns in that matrix is called the rank of that matrix. तो आप पहले क्या करेंगे, उसको इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और इक्लोन फॉर्म में जितनी नॉन जीरो रोज हैं, अगर आप रो इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट किया है तो जितनी नॉन जीरो रोज होंगी वो उसकी रैंक होगी, और अगर आपने कॉलम इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट किया है तो जितने नॉन जीरो कॉलम्स होंगे वो उसकी रैंक होगी। नलिटी आपको पता ही, हाउ टू फाइंड आउट नलिटी, नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस रैंक। और रैंक चाहे आप कॉलम इक्लोन फॉर्म से निकालिए चाहे रो इक्लोन फॉर्म से निकालिए, बोथ रैंक्स आर, बिकॉज रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक नंबर। तो चाहे आप रो इक्लोन फॉर्म से निकालेंगे या कॉलम इक्लोन फॉर्म से, आंसर विल बी सेम। तो वही रिमार्क ये था, रो रैंक एंड कॉलम रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स आर सेम, चाहे आप रो इक्लोन फॉर्म से चेक करिए या कॉलम इक्लोन फॉर्म से, दोनों से आंसर सेम आएगा। Clear? So the number of non-zero rows in row echelon form is a matrix, in a matrix is the rank of that matrix. So एक और रिमार्क है थोड़ा कि आपको आइडिया लग जाए कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका रो इक्लोन फॉर्म क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, और अगर कॉलम इक्लोन फॉर्म है तो वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, देखिए ये सारी एक तरह से आप, क्योंकि स्क्वायर नहीं है इसलिए आप इसके डायगोनल एलिमेंट्स को चेक नहीं कर पा रहे हैं, बट अदरवाइज अगर आप चेक करें, देखिए तो ये 3/4 की है तो स्क्वायर नहीं है, ये भी 3/4 की स्क्वायर नहीं है, बट ये 4/4 की, तो इसका डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, तो अगर ये रो इक्लोन फॉर्म में है तो ये अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में होगी, इसके सारे लोअर डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो। सिमिलरली अगर ये कॉलम है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, ये ये भी 4/4 का मैट्रिक्स है। 4/4 मैट्रिक्स में अगर आप देखिए, दीज आर डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर दिस इज अप लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसके अपर डायगोनल एलिमेंट सारे क्या है, जीरो, तो दिस इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो दिस इज दैट रिमार्क।
If A is a square matrix, then the row echelon form is an upper triangular matrix and column echelon form of that matrix is lower triangular matrix. Now, the second application, I told you what is the use of rank of a matrix. First, to find out the solution of linear system, and second, to find out whether the given vectors are linearly independent or dependent. सो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? सपोज अगर मैं कोई नंबर लिख रहा हूँ, एक वेक्टर लिख रहा हूँ 1 2 4, सपोज एक कोई वेक्टर है, 3 डायमेंशनल वेक्टर है 1 2 4, सो 1 2 4 हो गया। और दूसरा सपोज मैंने लिखा 2 4 6, क्लियर? सो अगर आप इन दोनों को देखिए 1 2 4 2 4 6, ये भी 3 डायमेंशनल वेक्टर है, ये भी 3 डायमेंशनल वेक्टर है, बट 2 4 6 इज 2 टाइम्स ऑफ दिस, या फिर 1 2 4 इज हाफ टाइम ऑफ दिस। अगर आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा, और इस वाले वेक्टर में आप 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये जो केस होता है, तो दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंस केस, मींस these two vectors are linearly dependent. Clear? These two vectors are linearly dependent. क्यों? One can be derived from other. आप इससे ये बता सकते हो एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके, और इससे ये बता सकते हो एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके। सो दीज आर डिपेंडेंट वेक्टर्स। बट अगर मैं इसकी जगह लिखूं, सपोज कोई भी एक एलिमेंट इसका मैं चेंज कर देता हूं, सपोज 2 4, और सपोज मैं सपोज 8 लिख देता हूं, 8। सो नाउ दीज आर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। क्यों? आप इस वेक्टर में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करिए, यू कैन नॉट फाइंड दिस सेकेंड वन। सिमिलरली आप इस वेक्टर में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू कैन नॉट फाइंड दिस वेक्टर। तो आप किसी भी रियल नंबर का इसमें मल्टीप्लाई करिए, आपको अगर ये मिल पा रहा है तो दीज आर डिपेंडेंट, अदरवाइज दीज आर इंडिपेंडेंट। तो अब हम, क्योंकि 2 4 8 है, आप किसी फर्स्ट 2 को तो बना देंगे, 2 2 का मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 1 2 इंटू 2 4 हो, बट 2 इंटू 4, सॉरी ये क्या है, मैंने पहले शायद गलत लिखा हुआ था, मैंने 6 केस लिया था। सो 6 को मल्टीप्लाई करके हमें ये नहीं मिलेगा, सॉरी 2 का 1 इंटू 1, अगर हम 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 4 8। सो ये केस में जो होगा वो क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट होंगे, क्योंकि फर्स्ट 2 तो मिल जाएंगे, लेकिन थर्ड वाले से हमें थर्ड नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर 1/2 का आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट मिल जाएगा, सेकंड मिल जाएगा, पर इससे हमें 4 नहीं मिलेगा। सो इस केस में ये जो दोनों वेक्टर्स हैं वो क्या है, इंडिपेंडेंट। बट अगर ये 8 होता तो अब इससे हम ये बना सकते हैं, इससे ये बना सकते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा, इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा। सो नाउ दीज आर डिपेंडेंट, क्योंकि एक से दूसरा डिराइव हो सकता है। बट अगर हमें किसी भी रियल नंबर का मल्टीप्लाई करने से दूसरा या तीसरा नहीं मिल रहा है तो दीज आर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। सो we can use the concept of rank to find out whether the given set of vectors are independent or dependent. तो कैसे करना है? Simply we have to put each vector in each row, means every vector in the rows, means row wise we have to arrange the vectors, means suppose हमारे पास 10 वेक्टर हैं, 5 वेक्टर हैं, 6 वेक्टर हैं, तो हर एक को हम रो वाइज रख देंगे, फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, थर्ड वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, इसकी रो इक्लोन फॉर्म से रैंक निकालेंगे। अगर इसकी रैंक जो है इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर्स आ जाएगा तो हम बोलेंगे दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, अदरवाइज डिपेंडेंट वेक्टर्स। क्लियर? आई रिपीट, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। तो आपको करना क्या है, व्हाट इज द अप्रोच? दिस अप्रोच मींस रैंक कंसेप्ट कैन बी यूज्ड टू एग्जामिन, not rank concept means echelon form method. And this approach can be used to examine whether a given set of vectors are linearly independent or not, that means dependent. We form the matrix with each row as its row or column and reduce it to the row or column echelon form. Means what we have to do, we have to means position each vector as each row, first vector first row,
second vector, second row, third vector, third row. So in this form we will have one matrix. Next we will convert this in row echelon form and tell what is the rank. If rank is equal to the number of vectors, then we say these are independent vectors, otherwise dependent. Similarly, we can form on one other form, that is column. Means we can shift each vector in the column form. Means first vector first column, second vector second column, third vector third column. लेकिन उस केस में हम क्या करेंगे, we will convert this in column echelon form. और कॉलम इक्लोन फॉर्म की जो रैंक होगी, अगर इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वेक्टर्स, देन वी से दीज आर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, अदरवाइज डिपेंडेंट. दो ही केस बनेंगे, कभी भी ज्यादा रैंक नहीं आएगी. तीन वेक्टर्स हैं तो रैंक जो होगी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3, या तो 3 होगी और इट विल बी लेस देन 3. सो अगर 3 आ गई वेक्टर्स के इक्वल तो इंडिपेंडेंट, और कम आई तो डिपेंडेंट. कभी भी ज्यादा वाला केस नहीं बनेगा. So the number of non-zero rows is the dimension. अब dimension अभी आपको ये टर्म समझ में नहीं आएगा बिकॉज ये हमने पढ़ा नहीं है अभी वेक्टर स्पेस. अभी आप एक सिंपल कंसेप्ट याद रखिए, हाउ टू फाइंड आउट दैट वेदर अ सेट ऑफ वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट. आपको करना क्या है, जितने भी वेक्टर्स हैं आप सबको रो वाइज अरेंज करना है, एक मैट्रिक्स बनानी है, उसकी रो इक्लोन फॉर्म के थ्रू रैंक कैलकुलेट करना है. अगर रैंक जो है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर्स, तो हम बोलेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज डिपेंडेंट है. क्लियर? सो दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन. नाउ अब हम क्वेश्चन देखते हैं, हाउ टू फाइंड आउट रैंक यूजिंग इक्लोन फॉर्म. क्लियर? So either row echelon form or column echelon form. So if it is mentioned, then you have to convert in row echelon form, then we will use that form. Otherwise, if it is written that convert this matrix to echelon form, so it is our choice that whether we can convert this in row echelon form or column echelon form. That is our choice. So now reduce this following matrices to row echelon form and find their ranks. So we have to convert these matrices into row echelon form. So row echelon form के लिए आपको, जैसे मैंने आपको बोला था, आपने इनवर्स फाइंड आउट किया था यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस. इफ यू रिमेंबर द क्वेश्चंस, तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था. आप क्या करिए, इसको इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना था, इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना था. तो हम इसको यूज करके इसके नीचे जीरो करते थे, इसको नीचे यूज करके इसके नीचे जीरो करते थे, और इनको हम 1 बनाते थे, और ऊपर भी हम ऐसे ही करते थे. अब आपको करना क्या है इक्लोन फॉर्म के लिए, अगर आप रो इक्लोन फॉर्म की बात कर रहे हैं तो सिंपल यही कंसेप्ट रखना है. आपको क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू का यूज करिए, उसके नीचे जीरो कर दीजिए. अगर ये सपोज जीरो है तो हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं कि हम इसको जीरो कर दें. तो हम क्या करेंगे, किसी भी नॉन जीरो रो जहां पर भी हमें नॉन जीरो मिल जाए यहाँ पे से, उसको हम यहाँ से इंटरचेंज कर लेंगे. हमने कुछ क्वेश्चन में किया भी था, क्योंकि हमें इसको यूज करना है. तो हम उसको प्रेफर करेंगे जहां 1 होगा, क्योंकि 1 से हमारी कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगे. ये फर्स्ट स्टेप. सेम फिर हम क्या करेंगे, हम इसके बाद इस डायगोनली इस एलिमेंट पर शिफ्ट करेंगे. अब हम इसको यूज करेंगे और इसके नीचे जितने एलिमेंट है उन सबको जीरो करेंगे यूजिंग रो ऑपरेशंस. अगर ये जीरो एलिमेंट है तो हम नीचे वाले किसी रो से इंटरचेंज कर देंगे टू मेक इट नॉन जीरो. अगर सपोज पूरा ही कॉलम जीरो है, तो हम इसको छोड़कर फिर नेक्स्ट कॉलम पर शिफ्ट हो जाएंगे. मींस अब हम 3 को यूज करेंगे और इसके नीचे जीरो करेंगे. ये हमें एक प्रोसेस फॉलो करना है. इस प्रोसेस से ऑटोमेटिकली वो रो इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. आई रिपीट द प्रोसेस. आपको क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट का यूज करिए, उसके नीचे जितने एलिमेंट है उन सबको जीरो करिए. अगर ये एलिमेंट जीरो होता है तो आप नीचे वाली किसी भी रो को इंटरचेंज करके यहाँ नॉन जीरो एलिमेंट आपको लाना है. आप प्रेफर उसे करिए जहां 1 मिल जाए, क्योंकि उससे हमारी कैलकुलेशन इजी होंगी. आपने सारे जीरो कर दिए. नेक्स्ट, अब इस 1 के बाद आप यहाँ शिफ्ट करेंगे 2 को यूज करके आपके उसके नीचे जितने एलिमेंट है उन सबको जीरो करना है. यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट, जिसको यूज करना है वो नॉन जीरो होना चाहिए. अगर सपोज ये जीरो है तो नीचे वाली किसी रो से इंटरचेंज कर दीजिए टू मेक इट नॉन जीरो. अगर पूरा कॉलम जीरो है तो आप किसी से भी शिफ्ट करो वही रहेगा. तो आपको यही कंसेप्ट फिर इसको छोड़कर, इस कॉलम को छोड़कर आपको नेक्स्ट कॉलम पर शिफ्ट हो जाना है, यानी इस पर सेम चीज लगानी है. 3 को यूज करिए, नीचे सारे जीरो करिए. 3 अगर जीरो है तो नीचे वाले नॉन जीरो को ऊपर शिफ्ट कर दीजिए. ये कंसेप्ट आपको. सिमिलरली अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में सपोज ये पूरा ही कॉलम जीरो होता है, तो आप क्या करोगे, फिर आप 2 से स्टार्ट करोगे, इस 2 को यूज करोगे, उसके नीचे जीरो करोगे, फिर आप 3 पर शिफ्ट करोगे डायगोनली,
3 को यूज करके उसके नीचे 0 करोगे। ये कंसेप्ट अगर आप फॉलो करोगे तो कभी भी आप बीच में फंसोगे नहीं और आपकी ऑटोमेटिकली वो जो मैट्रिक्स है वो इकोलन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। सो हम ये कंसेप्ट यूज करेंगे। सो द क्वेश्चंस, now the question, so row echelon form में हमें convert करना है। So in row echelon form we have to use only row operations. In column echelon form we have to use only column operations. If you remember, there are 3 row elementary transformations and 3 row column elementary transformations. Clear? Sorry. Yeah. So these are means if you remember the what are the elementary transformations on a matrix, there are 3 operations. Clear? We can interchange any 2 rows, we can multiply any row by a non-zero constant and this. So there are 3 elementary operations on rows and 3 elementary operations on columns. So अगर आप रो इक्विवेलेंट फॉर्म यूज कर रहे हो तो हम केवल रो ऑपरेशंस यूज करेंगे। any 3 means these any of these row operation, any 3 मीन्स हाउ मेनी, इट डिपेंड्स दैट हमें कितने यूज करने हैं, वो हमारे क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि हमें फर्स्ट लगाना है, 2 सेकंड लगाना है, थर्ड लगाना है या सारे लगाना है। तो हमारा पर्पस है कि उसे हमें रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो बट रो इक्विवेलेंट फॉर्म में हम कन्वर्ट करने के लिए केवल रो ऑपरेशंस का यूज करेंगे। सिमिलरली रो कॉलम अगर इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कॉलम इक्विवेलेंट फॉर्म के लिए हमें केवल कॉलम ऑपरेशंस ही यूज करने हैं। तो ये 3 टाइप के कॉलम ऑपरेशन होते हैं, 3 टाइप के रो ऑपरेशन होते हैं, उनमें से ही हमें यूज करना है। रो इक्विवेलेंट फॉर्म के लिए रो ऑपरेशंस, कॉलम इक्विवेलेंट फॉर्म के लिए कॉलम ऑपरेशंस। नेक्स्ट देखिए कैसे आपको करना है इक्विवेलेंट फॉर्म। सो वेरी इजी क्वेश्चंस आर देयर। सो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रैंक फाइंड आउट करनी है। सो दिस इज योर क्वेश्चन, फर्स्ट मैट्रिक्स। So matrix is this is your A matrix. Now like I told you, what you have to means you have to start with the first element and convert all other elements 0 in that column. So हम इस 1 को यूज करेंगे, इनके सारे नीचे वाले एलिमेंट को 0 करेंगे। तो R2 चेंज होगा, R3 चेंज होगा, क्योंकि R2 को 0 करना है, R3 को 0 करना है। क्या ऑपरेशन होगा? R2 कैसे चेंज होगा? R2 चेंज टू R2, ये 1 है, ये 2 है। सो R2 माइनस 2 टाइम्स R1। क्लियर? सो R2 माइनस 2 टाइम्स R1, ऐसे R2 चेंज करना है। सिमिलरली R3 के लिए क्या ऑपरेशन होगा? ये -2 है, ये 1 है, तो इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करें और दोनों को ऐड कर दें तो R3 0 हो जाएगा। तो R3 चेंज टू R3 प्लस 2 टाइम्स R1। सो R3 प्लस 2 टाइम्स R1। देख लेते हैं। तो फर्स्ट में हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, तो फर्स्ट एज इट इज है 135। नेक्स्ट R2 को चेंज किया है, R2 माइनस 2 R1। सो R2 माइनस 2 R1 यानी 2 माइनस 2 1 0, -1 -2 टाइम्स 3 -1 या -6 -7, 4 -2 टाइम्स 5, सो 4 -10 -6। R3 में क्या लगाया? R3 प्लस 2 R1। सो R3 -2 प्लस 2 टाइम्स 1 0, 8 प्लस 2 टाइम्स 3 8 प्लस 6 14, 2 प्लस 2 टाइम्स 5 2 प्लस 10 12। नेक्स्ट, अब हमने क्या किया था? हमने 1 को यूज करके उसके नीचे 0 किया था। उसके बाद मैंने आपको बोला था आपको डायगोनली शिफ्ट करना है, यानी अब आपको -7 पर जाना है। -7 को यूज करके उसके नीचे जितने एलिमेंट है उन सबको हमें 0 करना है। तो उसके नीचे एक ही एलिमेंट है, तो हम R3 चेंज करेंगे, यानी इस 14 को 0 करना है। तो R3 में क्या ऑपरेशन होगा? क्योंकि ये -7 है, ये 14 है, तो इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो ये 0 हो जाएगा। तो R3 चेंज टू R3 प्लस 2 टाइम्स R2। सो केवल R3 चेंज है, बाकी दोनों अनचेंज है। So first row as it is 135, second row as it is next R3 में हमने ऑपरेशन लगाया, R3 change to R3 plus 2 R2। So 0 plus 2 times 0 0, 14 plus 2 times 7 minus 4, 14 minus 14 0, 12 minus 6 into 2, so 12 minus 12 0। क्लियर? सो नाउ यू चेक द डेफिनेशन। अब हमें क्या करना था? -7 के बाद फिर हम डायगोनली यहाँ शिफ्ट करते इसको, फिर हम इस 0 को यूज करके, मतलब इस जगह जो भी नंबर होता उसको यूज करके उसके नीचे 0 करते, बट इसके नीचे कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया।
तो ये ऑटोमेटिकली आपका इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो इक्लोन फॉर्म में क्या क्या कंडीशन है। ऑल द जीरो रोज आर एज एट बॉटम, और दूसरा अगर किसी भी रो के सारे एलिमेंट जीरो है तो उसके नीचे जितनी रोज हैं वो भी जीरो होंगे, तो वो भी सेटिस्फाई हो रहा है, एक ही रो जीरो है। फिर फर्स्ट रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 है, सेकंड रो का सेकंड रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट -7 है, तो इसके नीचे सारे जीरो हैं, इसके नीचे सारे जीरो है। और वो कंडीशन क्या थी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट जहां पर भी है उसके नेक्स्ट रो का जो भी फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है वो उसके राइट में होगा, तो ये -7 उसके राइट में। तो दिस इज इन इक्विवेलेंट फॉर्म। फिर से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। सो मैट्रिक्स आपको ये दिया है, आपको क्या करना है, वही प्रोसेस, आप पहले फर्स्ट एलिमेंट को यूज करेंगे, उसके नीचे जितने एलिमेंट है उन सबको जीरो करेंगे। सो फर्स्ट क्योंकि 1 है तो हमारे लिए थोड़ा कैलकुलेशन इजी भी हो जाएगा, तो R3 चेंज होगा, R4 चेंज होगा, R2 चेंज होगा, R3 चेंज होगा, R4 चेंज होगा। कैसे करना है, R2 को इस 1 से कैसे जीरो करोगे 2 को, सो 2 - 2 करना पड़ेगा, सो R2 चेंज टू R2 - 2 टाइम्स R1। तो हमने क्या, फर्स्ट को कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, तो फर्स्ट को एज इट इज रख दिया 1 2 3 4 1 2 3 4। R2 में हमने चेंज किया, R2 चेंज टू R2 - 2 टाइम्स R1, सो 2 - 2 0, 1 - 2 times 2, 1 - 4 -3, 4 - 2 times 3, so 4 - 6 -2, 5 - 2 times 4, 5 - 8 -3। आप 1 को जीरो करना है तो क्या करना पड़ेगा, R3 - R1 करना पड़ेगा, so R3 - R1, so 1 - 1 0, 5 - 2 3, 5 - 3 2, and 7 - 4 3। क्लियर। नाउ अब 8 को करना है, तो 8 को 1 से कैसे जीरो करोगे, इसमें 8 का मल्टीप्लाई करोगे और इसमें से माइनस करोगे, तो R3 - 8 टाइम्स R1, so R4 चेंज टू R4 - 8 टाइम्स R1, this is R4 so R4 - 8 times R1, so 8 - 8 0, 1 - 8 times 2, 1 - 16 -15, 14 - 8 times 3, so 14 - 24 -10, 17 - 8 times 4 यानी 17 - 28, sorry 32, so 17 - 32 is -15। नेक्स्ट, अब आपको क्या करना था, सो अब इस 1 के यूज करके आपने नीचे जीरो किया, अब आपको क्या करना है, डायगोनली शिफ्ट करना है -3 पर। -3 को यूज करके उसके नीचे हमें सारे क्या करना है, जीरो करने हैं। तो आप देख लीजिए, आपको R3 चेंज करना है, R4 चेंज करना है। सो R3 में क्या करोगे, 3 है -3 है तो ऐड कर देंगे, तो R3 + R2। सो फर्स्ट एज इट इज, क्योंकि उसमें हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, R2 में भी कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, तो R2 भी एज इट इज। नेक्स्ट R3 चेंज किया, R3 + R2, सो 0 + 0 0, 3 - 3 0, 2 - 2 0, 3 - 3 0। नेक्स्ट R4, ये -15 है, ये -3 है, हमें R2 को ही यूज करना है, तो -3 से -15 कैसे जीरो करोगे, इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस कर देते हैं, सो R4 -5 टाइम्स R2, सो 0 - 5 टाइम्स 0 0, 50 -15 -5 into -3, so 0, -10 in -5 into -2, so 10 plus 10 -10 plus 10 0, -15 -5 times -3, so 0, 15 -15 0। so अब आपको करना क्या था, देखिए 1 को यूज करके उसके नीचे जीरो किए, फिर हमने -3 को यूज करके उसके नीचे जीरो किए, अब हमें यहाँ शिफ्ट होना था -3 के बाद इस जीरो पर, बट इस ये 0 0 है और इसके नीचे क्या है, ऑलरेडी जीरो है, तो ये कॉलम ऑलरेडी जीरो है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉलम पर शिफ्ट करेंगे। मैंने आपको बोला था अगर ये जीरो है जिसको यूज करना है तो उसके नीचे किसी नॉन जीरो एलिमेंट को हमें फिर इंटरचेंज करते हैं, लेकिन वो भी जीरो है, पूरा कॉलम जीरो है, जिसको यूज करना है और इसको जीरो करना है, पूरे कॉलम जीरो है, तो हम इसी तरह से नेक्स्ट कॉलम पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब हम इसको यूज करेंगे, इसके नीचे जीरो करेंगे, लेकिन उसमें भी वही केस है, ये जीरो है और इसके नीचे भी सारे जीरो है, तो हम इंटरचेंज भी नहीं कर सकते, तो यानी ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया, यानी ये इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्लियर, आप चारों कंडीशन, तीनों कंडीशन चेक कर सकते हो, दिस इज इन इक्लोन फॉर्म। अब अच्छा हाँ, जब भी इक्लोन फॉर्म में आ जाएगा मैट्रिक्स, तो आपको क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। सो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इसमें कितनी है, 1 2, सो इसकी रैंक क्या होगी, 2। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें भी फर्स्ट नॉन जीरो रो, सेकेंड नॉन जीरो रो, ये जीरो रो है, ये जीरो है, तो कितनी नॉन जीरो रो है, 2, तो अगेन इस मैट्रिक्स की भी रैंक क्या है, 2।
क्लियर? सो दिस इज द प्रोसेस। अगेन अब आपको क्या करना है, कॉलम इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इसकी रैंक निकालनी है। तो कॉलम के लिए आपको केवल कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना है। रिमेंबर कि अगर आपको रो इक्लोन फॉर्म यूज करना है तो केवल रो ऑपरेशन यूज करने हैं, अगर कॉलम इक्लोन फॉर्म में करना है तो केवल कॉलम ऑपरेशन ही यूज करने हैं। तो कॉलम में भी यही कंसेप्ट है। आपने क्या दिया, ये मैट्रिक्स दिया है ए, अब आप क्या करोगे, इस 3 को यूज करोगे। पहले हम रो वाइज जीरो कर रहे थे, लेकिन अब हमें कॉलम वाइज जीरो करना है क्योंकि कॉलम इक्लोन फॉर्म है। तो अब हम 3 को यूज करके इन 1 7 को जीरो करेंगे। क्लियर? सो C2 चेंज हो जाएगा, C2 माइनस 1/3 C1। आपने इसमें 1/3 का मल्टीप्लाई किया और इसमें से माइनस कर दिया। सो फर्स्ट कॉलम एज इट इज है क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं किया है। सेकेंड में देखिए C2 चेंज टू C2 माइनस C1/3। सो 1 माइनस 3/3 0, और 2 माइनस 1/3 into 1, so 2 minus 1/3 5/3, minus 1 minus 4/3 minus 7/3, 1 minus 2/3 1/3। अब C3 तो 7 को यूज करके इसको जीरो करना है। तो क्या करना है, इस नंबर में हम 7/3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें से माइनस कर देते हैं। तो वही किया है, C3 चेंज टू C3 माइनस 7 टाइम्स C1/3। सो 7 माइनस 7/3 0, 4 minus 7/3 5/3, 7 minus 4 into 7/3, तो माइनस 7/3, 5 माइनस 7/3 into 2 1/3। ठीक है। अब सिमिलरली जैसे हम डायगोनल वहां पर शिफ्ट करते हैं, यहाँ पर भी करना है। आपने 3 को यूज किया, उसके उसके साइड में जीरो किया क्योंकि कॉलम इक्लोन फॉर्म है। अब इसके डायगोनल एलिमेंट कौन सा है, ये 5/3। अब हम इसके साइड वाले जीरो करेंगे, इस 5/3 को यूज करके इसके साइड में जितने एलिमेंट है सबको जीरो करेंगे। तो केवल C3 में ऑपरेशन लगेगा। तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकेंड कॉलम एज इट इज। C3 में ऑपरेशन चेक कर लेते हैं। तो आपको इसको यूज करके इसको जीरो करना है, तो दोनों सेम ही है। C3 चेंज टू C3 माइनस C2। सो फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड एज इट इज। 0 minus 0 0, 5 minus 3 minus 5/3 0, minus 7/3 minus minus 7/3 0, 1/3 minus 1/3 0। तो ये कन्वर्ट हो गया कॉलम इक्लोन फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम यहाँ शिफ्ट करते और साइड में जीरो करते, बट ये जीरो है, उसके साइड में कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो सेम हम इस पर शिफ्ट करते और इसके आगे के जीरो करते, वो भी आप कोई एलिमेंट नहीं है, नॉन जीरो। तो यानी ये हमारा कॉलम इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें जितने नॉन जीरो कॉलम्स हैं वो रैंक है। तो एक नॉन जीरो कॉलम, सेकेंड नॉन जीरो कॉलम, ये जीरो कॉलम है, तो 2 ही नॉन जीरो कॉलम है। सो इट्स रैंक इज 2। क्लियर? अब दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी हमें क्या करना है, इस 1 को यूज करेंगे, इसके साइड के जीरो करेंगे। तो ये तो बहुत इजी मैट्रिक्स है। सो C2 माइनस C1, C3 प्लस C1, C3 माइनस C1, सॉरी C2 माइनस C1, C3 प्लस C1, C4 माइनस C1। ये सारे ऑपरेशन लगा के आपके ये तीनों एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। तो उसी तरह से ये भी C2 C3 C4 चेंज हो गए। अब आपको क्या करना है 1 के बाद इस 2 को यूज करना है और इसके साइड में जीरो करना है। तो C3 चेंज होगा एंड C4 चेंज होगा। C3 के लिए -4 है, ये 2 है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। सो C3 प्लस 2 C2, और ये -2 है तो डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो C4 प्लस C2। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो गया, कॉलम इक्लोन फॉर्म में। तो एक एक नॉन जीरो कॉलम, सेकेंड नॉन जीरो कॉलम, बाकी 2 जीरो कॉलम है। इसकी रैंक भी क्या होगी, 2। क्लियर? नाउ the second application, examine whether the following set of vectors is linearly independent or dependent। so हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं। कितने वेक्टर्स हैं, दिस इज फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, थर्ड वेक्टर। तो हमारे पास प्रोसेस क्या है, LI LD चेक करने का। LI मींस लीनियरली इंडिपेंडेंट, LD मींस लीनियरली डिपेंडेंट। तो हम जितने भी वेक्टर्स हैं उनको रो वाइज सब्स्टिट्यूट करेंगे, शिफ्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 फर्स्ट, 2 0 1 -2 सेकेंड रो, 3 2 4 2 थर्ड रो। ये होगी हमारी मैट्रिक्स। अब हम इसको रो इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वही कंसेप्ट से रो इक्लोन फॉर्म में जितने रैंक आएगी उस रैंक को चेक कर लेंगे वो वेक्टर्स के इक्वल है या नहीं। कितने वेक्टर्स है, 1 2 3। तो अगर 3 रैंक आएगी तो LI होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, और अगर 3 से कम आएगी तो डिपेंडेंट होंगे। 2 ही केस बनेंगे। तो इसको रो इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करते हैं, इसको यूज करेंगे, इसके नीचे जीरो करेंगे तो R2 चेंज होगा, R3 चेंज होगा। 2 माइनस, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो R2 माइनस 2 R1। और 3 के लिए R3 चेंज टू 3 टाइम्स R3 माइनस 3 R1। सो R3 माइनस 3 R1। सो पहला एज इट इज, कोई चेंज नहीं किया है।
2 minus 2 0, 0 minus 2 times 2, 0 minus 4 minus 4, 1 minus 2 times 3, 1 minus 6 minus 5, 2 minus 2 minus 2 into 4 minus 8, minus 2 minus 8 minus 10। इसी तरह से दूसरा। बस अब हमें क्या करना है इसको के बाद हमें इसको यूज करना है और इसके नीचे जीरो करना है। ये तो सेम नंबर है तो R3 चेंज टू R3 माइनस R2, तो ये हमारा रो इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कितनी रैंक है 1 2, दो ही नॉन जीरो रो है तो रैंक इज 2, और रैंक 2 है और वेक्टर्स कितने थे 1 2 3, सो 2 इज लेस देन 3, दैट मींस LD वेक्टर्स होंगे। सिंस ऑल द रोज इन द रो कॉलम आर नॉट नॉन जीरो तो गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट LD, क्योंकि रैंक हमें अगर 3 मिलती तो LI होते यानी इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, और अगर रैंक 3 से कम है तो लीनियरली डिपेंडेंट। दूसरा क्वेश्चन भी, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 वेक्टर्स हैं, तो चारों को हमने रो वाइज रखा 1 2 3 4, रो इक्लोन फॉर्म में चेंज किया। रैंक कितनी आ रही है 1 2 3 4, चारों के चारों नॉन जीरो रो है तो रैंक इज 4 एंड 4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर्स 1 2 3 4, सो LI होगा L लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब देखिए अगर ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स टू इक्लोन फॉर्म। देखिए अब इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है वेदर इट इज रो इक्लोन फॉर्म और कॉलम इक्लोन फॉर्म, हम किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं एंड फाइंड इट्स रैंक। तो अब अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स हमें गिवन है, हम क्या करते हैं फर्स्ट को यूज करके उसके नीचे जीरो करेंगे। अब देखिए ये नॉन जीरो है तो हम 2 को यूज करके भी इनको जीरो कर सकते हैं, बट यहाँ जिसको यूज करना है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो हम 2 को भी यूज कर सकते हैं। बट क्योंकि अगर यहाँ 1 होता तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है, क्योंकि अगर यहाँ सपोज ये वाला मैट्रिक्स होता 1 तो हम 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करते, 4 का यहाँ मल्टीप्लाई करते, हमें जीरो मिल जाते। लेकिन अगर ये 2 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 1 में पहले 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा, इस 4 के लिए पहले इस 2 में मल्टीप्लाई करना है। तो कैलकुलेशन को अगर आपको थोड़ा इजी करना है तो इन्होंने 1 को ऊपर ले आए हैं, माने इस रो को इंटरचेंज कर दिया है। बट ये ऑप्शनल है, ऐसा जरूरी नहीं है आपको ऐसे ही करना है। आप इस 2 को यूज करके भी इन सबको जीरो कर सकते हो। रैंक बस हो सकता है ये मैट्रिक्स लास्ट में आपकी अलग आए बट रैंक चेंज नहीं होगी। इसकी रैंक अगर 4 आ रही है तो आपकी भी 4 ही आएगी। एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन एलिमेंट से हमें मतलब नहीं है, हमें क्या चेक करना होता है केवल कितनी नॉन जीरो रोज है। तो एलिमेंट डिफरेंट हो सकते हैं बट रैंक एक ही आएगी, कॉमन आएगी, मतलब आंसर सेम होगा। ठीक है, तो आप या तो इस 2 को यूज करके नीचे जीरो करिए या फिर इंटरचेंज कर लीजिए, क्योंकि 1 से हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी। तो इन्होंने फर्स्ट स्टेप थोड़ा चेंज किया है, इस वाली रो को हमने ऊपर रख दिया है यहाँ और इसको शिफ्ट कर दिया, तो इंटरचेंज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड रो। सो सेकेंड वाली फर्स्ट बन गई 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 4 2, और फर्स्ट वाली को हमने सेकेंड बना दिया। अब वही प्रोसेस इन्होंने लगाया है। ठीक है, तो पहला प्रोसेस क्या है, इसको यूज करेंगे, इसके नीचे जीरो करेंगे, तो क्या क्या चेंज होगा R2 और R4। R3 में ऑलरेडी जीरो है इसलिए इसमें कोई ऑपरेशन लगाना नहीं है, हमें इन तीनों को जीरो करना है, ये तो ऑलरेडी जीरो है, तो केवल R2 और R4 चेंज होंगे। क्या ऑपरेशन होगा, R2 चेंज के लिए 2 माइनस 2 टाइम्स 1 और 4 माइनस 4 टाइम्स 1। ठीक है, तो R2 चेंज टू R2 माइनस 2 टाइम्स R1 और R4 चेंज टू R4 माइनस 4 टाइम्स R1। तो कितनी चेंज हुई है R2 और R4, यानी R1 और R3 अनचेंज्ड है, तो वो दोनों सेम रख दीजिए। सो फर्स्ट रो हमने रख दी, थर्ड रो रख दी, कोई चेंज नहीं किया। अब चेंज जो हुआ है वो R2 और R4 में हुआ है, तो 2 माइनस 2 टाइम्स 1 0, माइनस 4 माइनस 2 टाइम्स माइनस 2, सो माइनस 4 प्लस 4 0, 3 माइनस 2 टाइम्स माइनस 1, सो 3 प्लस 2 5, माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स माइनस 4, सो माइनस 1 प्लस 8 7, फिर 0 माइनस 2 टाइम्स 2, सो 0 माइनस 4 माइनस 4। R3 को हमने कोई चेंज नहीं किया, वो एज इट इज है। R4 4 माइनस 4 टाइम्स 1 0, माइनस 7 माइनस 4 टाइम्स माइनस 2, सो माइनस 7 प्लस 8 1, 4 माइनस 4 टाइम्स माइनस 1, सो 4 प्लस 4 8, माइनस 4 और माइनस 4 टाइम्स माइनस 4, सो माइनस 4 प्लस 16 यानी 12, 5 माइनस 4 इंटू 2, सो 5 माइनस 8 माइनस 3। क्लियर, अब हम क्या करेंगे देखिए, तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमें क्या करना था, इसको इसके यूज करके इसके नीचे जीरो किए, अब हमें डायगोनली शिफ्ट करके इसको यूज करके, यानी इस जीरो को यूज करके इसके नीचे 1 बनाने हैं, लेकिन जिसको यूज करना है वो जीरो है,
तो इस जीरो की हेल्प से इन दोनों को जीरो नहीं कर सकते, तो मैंने आपको बोला था कि नीचे जो भी नॉन जीरो एलिमेंट है आप उससे इंटरचेंज कर लीजिए। प्रेफर उसे कीजिए जहां वन हो, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी। तो हम या तो R3 से चेंज कर लें या R4 से चेंज कर लें, तो हमारा पर्पस कंप्लीट हो जाएगा। किसी से भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों में वन है। तो हमने क्या किया, R2 से चेंज कर लिया, R2 एंड R3 को इंटरचेंज कर दिया। सो ये जो R3 था 0 1 -1 3 1, वो हमने ऊपर रख दिया, और जो R2 था वो हमने नीचे शिफ्ट कर दिया R3 की जगह। सो 0 0 5 7 4 इंटरचेंज हो गया। इंटरचेंज क्यों किया, क्योंकि इस जीरो को यूज करके नीचे वन हम जीरो नहीं बना सकते। क्लियर? सो इसलिए हमने इस जीरो को नॉन जीरो बनाने के लिए इन दोनों में से किसी भी रो से इंटरचेंज कर दिया। R3 से हमने इंटरचेंज किया है। अब हम वही कंसेप्ट लगाएंगे। तो हमने पहले क्या किया, इसको यूज करके इसके नीचे जीरो किए, सॉरी इसके नीचे जीरो किए। अब हम इसको यूज करेंगे और इसके नीचे इस वन को यूज करेंगे और इसके नीचे जीरो करेंगे। सो ये वन को यूज करके इस जीरो को जीरो, तो ये तो ऑलरेडी जीरो है, तो R3 में कोई चेंज नहीं आएगा। इस वन को जीरो करना है तो केवल R4 चेंज होगा। सो R4 कैसे चेंज होगा, R4 माइनस R2, क्योंकि 1 - 1 से जीरो हो जाएगा। तो केवल एक ही ऑपरेशन लगाया, R4 चेंज टू R4 माइनस R2। सो केवल R4 चेंज हुआ है, बाकी तीनों एज इट इज हैं। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड एज इट इज, थर्ड एज इट इज, केवल R4 चेंज किया है। सो 0 - 0 0, 1 - 1 0, 8 minus -1, so 9, 12 -3, 9, -3 -1, so -3 + 1 यानी -2। क्लियर? नेक्स्ट, सो व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप, आप इस वन को यूज करके हमने नीचे जीरो किए थे, अब इस वन के बाद इस 5 पर शिफ्ट करेंगे और इसके नीचे जितने भी एलिमेंट है सबको जीरो करेंगे। तो इन्होंने हम 9 को यूज जीरो करना है, इस 5 को यूज करना है, तो R4 केवल चेंज होगा। तो R4 को कैसे किया है, इसमें हम इसमें 9/5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 9 बन जाएगा और माइनस कर देते हैं। सो R4 - 9/5 R3। तो केवल R4 चेंज हुआ है, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड एज इट इज, थर्ड एज इट इज, केवल R4 में हमने ऑपरेशन लगा दिया है। तो क्या ऑपरेशन लगाया है, जीरो, क्योंकि ये 0 0 है कोई चेंज नहीं आएगा, 0 0 है कोई चेंज नहीं आएगा। 9 - 9/5 into 5, so 9 - 9 0, 9 - 7 into 9/5, so 9 - 63/5, so जो भी सॉल्व करके आ रहा है -18/5, तो -2 और -9/5 into -4, तो जो भी सॉल्व होके आ रहा है वो ये आ रहा है। अब क्या था स्टेप 5 को यूज किया, नीचे जीरो किए थे। अब 5 के बाद हमें यहाँ शिफ्ट करना है और इसके नीचे जीरो करना है, बट इसके नीचे कोई एलिमेंट नहीं है, यानी ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो हमारा ये रो इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें कितनी नॉन जीरो रोज हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऑल आर नॉन जीरो रोज। सो नॉन जीरो रोज कितनी, 4, इसलिए रैंक क्या होगी, 4। आप चेक कर सकते हो ये इक्लोन फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है, तीनों डेफिनेशन, तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। बस यही आप क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए। अगर कोई डाउट है तो वी कैन डिस्कस इन दी व्हाट्सएप ग्रुप और इन दी लाइव क्लास। इसमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 3। तो आपको कंसेप्ट बताया था, उस रैंक माइनर मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन माइनर मेथड से ये टफ पड़ेगा क्योंकि रैंक 3 है, तो 3/3 का कौन सा माइनर आप सॉल्व करोगे, या तो इसको करोगे, क्योंकि लेकिन कोई भी माइनर आपका नॉन जीरो हो सकता है, जरूरी नहीं ये वाला आप सिलेक्ट करो वही आपका नॉन जीरो आएगा। तो माइनर में प्रॉब्लम होगी, इसको आपको इक्लोन फॉर्म से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो इक्लोन फॉर्म से आपको क्या करना है, मैट्रिक्स की रैंक को 3 का चेक करना है कब आएगी। तो हम इक्लोन फॉर्म में पहले से कन्वर्ट कर देते हैं। क्या करोगे, 1 का यूज करके इस तीनों को जीरो करोगे, तो ये तीनों ऑपरेशन अब आपको पता है कैसे लगाना है। तो ये चेंज होके ये आ गया। अब आप इस -7 को यूज करोगे, इसके नीचे जीरो करोगे, तो उसको आपने ये ऑपरेशन लगा के ये भी बन गया। अब -7 के बाद क्या करोगे, -2 को यूज करके इस 1 को जीरो करोगे, तो वो भी आपने ये वाला ऑपरेशन लगा दिया। तो ये फाइनली आपका इक्लोन फॉर्म में आ गया। अब आपको पता है इक्लोन फॉर्म में रैंक क्या होती है, जितनी नॉन जीरो रोज हैं। तो फर्स्ट नॉन जीरो रो है, सेकेंड नॉन जीरो रो है, थर्ड नॉन जीरो रो है, फोर्थ का आपकी जो जीरो रो है, नॉन जीरो है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, के पर। अगर के 1 हो गया तो 1 - 1 0, यानी ये जीरो रो हो जाएगी। और के अगर 1 के अलावा कुछ भी है तो ये नॉन जीरो रो होगी। तो कंडीशन क्वेश्चन क्या दिया है, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 3। तो मैट्रिक्स की एक ही रैंक 3 है, तो 3 कब होगी, जब के की वैल्यू क्या होगी, जब ये जीरो रो होगी। लास्ट वाली ये तीनों तो जीरो हो नहीं सकती क्योंकि इसमें तो सारे कांस्टेंट है, यही इसमें पैरामीटर है। तो पैरामीटर की वैल्यू अगर 1 हो गई तो ये जीरो रो हो जाएगी, और जीरो रो हो जाएगी दैट मीन्स रैंक 3 हो जाएगी। तो के की वैल्यू क्या होना चाहिए, 1। तो के जब 1 होगा, यानी के -1 जब जीरो होगा, के की वैल्यू 1 होगी, तो इसकी रैंक क्या होगी, 3। सो ये इसका आंसर है।
तो ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करिए, रैंक निकाल लीजिए, इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करिए, रैंक निकालिए, इक्लोन फॉर्म में चेंज करिए, रैंक निकालिए। ये कॉलम इक्लोन फॉर्म है, इसलिए कॉलम ऑपरेशन सारे यूज करोगे और रैंक बताएंगे। इसमें भी वही है, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ म्यू फॉर विच द मैट्रिक्स इज इक्वल टू द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 3। क्लियर? तो इसको भी आप या तो इस तरीके से कर सकते हो जैसे आपने के लिए सॉल्व किया था, और यानी म्यू के लिए आप इक्लोन फॉर्म में से कन्वर्ट कर दीजिए। इन्होंने एक डिटरमिनेंट ले लिया है, सो डिटरमिनेंट ए जो है, हाँ क्योंकि ये 4x4 मैट्रिक्स का है, तो 4x4 मैट्रिक्स है, तो इसकी रैंक ये बोल रहा है 3, तो 4 नहीं होगी, यानी 4 ऑर्डर का जो माइनर होगा वो 0 होगा। तो 4 ऑर्डर का माइनर क्या होगा? इटसेल्फ, क्योंकि 4x4 का मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट इटसेल्फ होगा। तो इन्होंने 4x4 मैट्रिक्स ऑर्डर का जो माइनर है यानी डिटरमिनेंट वो सॉल्व किया है। उस डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको पता है 0 होना चाहिए क्योंकि इसकी रैंक 3 है। तो 4 ऑर्डर माइनर जो है वो 0 ही होगा, अगर वो नॉन 0 हो गया तो इसकी रैंक 4 हो जाती। तो इसलिए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0। तो 0 ये कॉम्बिनेशन बना डिटरमिनेंट सॉल्व करने के बाद, तो ये कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि रैंक क्या है? 3, यानी 4 ऑर्डर का माइनर 0 होगा। सो 0 होगा, दैट मीन्स ये कॉम्बिनेशन 0 होगा। ये कॉम्बिनेशन यानी क्यूबिक इक्वेशन है, ये कब कब 0 हो सकती है? जब म्यू की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी या 3 होगी। 3 रूट निकलेंगे क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, तो तीनों वैल्यू के लिए इसकी रैंक 3 होगी। सो ऐसे ही अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रैंक ऑफ ए बी, ए प्लस बी, ए बी, बी ए, इफ ए इज दिस, बी इज दिस। तो कुछ नहीं, बस एक छोटा सा एडिशन है टू द क्वेश्चन। ए की रैंक बतानी है तो ए को आपको पता है कैसे रैंक बताना है, बी की रैंक बतानी है कैसे आपको पता है, रो इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करिए। अब आपको ए प्लस बी चाहिए तो पहले इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दीजिए, तो ए प्लस बी निकाल लीजिए, वो आपको ये मिल गया। ये ए प्लस बी है, दोनों को एडिशन, फिर आपको पता है ये एक नई मैट्रिक्स है, इसकी रैंक कैसे निकालते हैं आपको पता है, रो इक्लोन फॉर्म में चेंज कर दिए, उसकी रैंक बता दीजिए। ऐसे ही पहले ए इंटू बी यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, जो मैट्रिक्स बनेगी उसकी रैंक निकालिए। बी इंटू ए यानी बी इंटू ए, आप मल्टीप्लिकेशन निकालिए, उसकी रैंक निकाल दीजिए, वो आपकी रैंक बन जाएगी। सो दिस वाज अबाउट इक्लोन फॉर्म। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा दैट वुड बी अबाउट नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अभी हमने इक्लोन फॉर्म देखा कि how to convert a matrix into echelon form and what is the rank of matrix when it is in echelon form. ऐसे ही so how to convert the matrix into normal form and what is rank of matrix when it is in normal form. So इसी टाइप के कंसेप्ट है।